Assalamualaikum everyone, and I would like to welcome you all over here for this seminar on emotional intelligence. Before we will begin the seminar, I would first like to call Mr. Dinesh Shekhar, who will introduce to you what MPF is. Mr. Dinesh Shekhar. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. A very good morning to all of you, and it's good to see so many people, and especially so many young people taking our time on Saturday morning, which is normally a family day or a Sunday. So on behalf of ACCA and FPL, I would like to welcome you at today's program on emotional intelligence, which apart from the audience sitting over here, is also going live globally over webinar. Just a brief intro of MPF, Layman Professional Forum, or in short form we say MPF. MPF was formed, or the foundation stone of MPF was laid some 35 years back by a few visionary leaders of the community. And the objective was to bring on one platform human professionals and keep them connected and engaged to various activities, which may be like CPD activities, social activities, and networking activities. And since then, with the number of years we have grown immensely, and the membership base is like 1200 plus up till now. And one thing unique about MPF is like we have a varied and diversified people coming from different backgrounds. It's not like ACCA or it's not like any medical profession platform that people from only one discipline are there. So we've got like doctors as our members, we've got engineers as our members, we've got architects as our members, we've got accountants as our members. So which gives a very good flavor about different events that takes place. For example, we are having an event on emotional intelligence. We will also have an event on, let's say, oncology, on cancer, or breast cancer. It's a very good mix. And it also provides a very good networking opportunity because once you meet with people of different backgrounds, so it actually enrich your experience. So, just a brief about our partnership with ACCA. So MPF has kind of collaborated with ACCA, which is top in its league. Everyone knows ACCA doesn't require any introduction. So we plan to hold a series of seminars and events going forward. So this is the first of a seminar of this. So I welcome you once again on behalf of ACCA. Thank you, Junaid. It was indeed refreshing to know what MPF is all about. Now we would like to start the seminar, and I would now like to call upon Mr. Taimur Behram Khan, Head of Business Development South, ACCA. He will be giving you a presentation on what emotional intelligence is. It will be an interactive session. So if you have any questions, you can always memorize it and always ask him, and we will have panel discussions as well towards the end of the seminar. In that, the business leaders will be there to answer all your queries. Mr. Taimur Behram Khan. Thank you very much, and first of all, thank you for coming on a Saturday, and thank you very much for whoever is participating via online channel. This is a very important session, and collaboration with MPF is something which will have a lot of depth in future as well. We are planning a joint calendar as well. So the Gear Up platform, the platform where we try to develop our students and affiliates, is exactly what MPF is also doing. So we'll be touching base with MPF, and this is just a start. So it is an exciting time for each one of us. So first of all, a big hand of applause for all of yourselves. Saturday को आना और वो भी कराची में इस हवाओं में कोयटा थी. This is not a small feat. So thank you very much for being here. Now let me just talk about this presentation. ACCA has conducted global researches और ये क्या रहता है policy department हमारा करता है जो कि independent होता है. So we had over 2,000 accountants globally who were part of there were 300 workshops which were run. And what the question was, what would be the future accountant be like? What were the traits that we are looking for people to develop for future accountants? So उसमें एक पूरा उन्होंने questions identify किए थे, जिनमें से EQ, emotional quotient, was a major factor
फॉर लीडरशिप रोल्स, आप चाहे ग्राउंडेड हो या ना हो, आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना लाजमी है. यू डोंट हैव अ चॉइस. अब आपको आगे समझाते भी हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या. बाय द वे, रेज योर हैंड, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप में से कितनों ने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है? This is a good number to start with, and we'll see कि जिन्होंने हाथ उठाए थे उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग में कितना फर्क है. उसको हम चेक कर लेते हैं. So, what is emotional intelligence? सबसे पहला जो स्टेप होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, it is about self awareness. Now I'm going to take it a bit further. आज आप आए इस वाले दिन में, तो आपका मूड कैसा था? जब आप सुबह आए, आपको पता था आपने सैटरडे को आना था, एंड दैट वाज फॉर यू आल्सो नदीम, अब्दुल कादिर, आपके लिए भी कमिंग ऑन अ सैटरडे. सो ऑन अ स्केल फ्रॉम -5 to +5, where would it stand? +5. So you were really energetic. It's a learning opportunity. And energy wise आप कैसे फील कर रहे थे? एनर्जी आपकी हाई थी या लो थी? मतलब मूड अच्छा था लेकिन एनर्जी I'm blessed with good amount of energy. good energy. So यानी you had a high energy. Yes. And your mood was also positive. So self, आपका Around +4. +4. So there was a gap some sort. And जुनैद का तो मेरे ख्याल है आपका तो 5 भी होगा. So आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोगों को, आपको एक बंदा आके अगर बता दे, वॉलंटियर करे, आप बता दो आज आपका कैसा था मूड और साथ में आपकी एनर्जी लेवल. स्टार्टिंग तो -5 से ही होता है, रास्ता ऐसे 5 तक पहुंच गया. 5 तक आपको पहुंच गया. अभी यू आर 5. अच्छा. सो दिस इज सेल्फ अवेयरनेस कि आपको अपने आप को मेजर करना कि हाउ यू आर फीलिंग. बीइंग कॉन्शियस अबाउट हाउ यू आर फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बारे में आपको मैं कनेक्ट करके बताता हूँ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. लेकिन पहली चीज पे तो ये एस्टैब्लिश कर देना कि अपने बारे में पोजीशन ऑडिट करना कि हाउ थिंग्स स्टैंड फॉर यू राइट नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड थिंग इज सेल्फ मैनेजमेंट. लाइक लेट्स से अभी तक किसी ने नहीं बोला, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसका मूड भी खराब है और जो नहीं आना चाहता था. No one will, you know, ask. लेकिन होता है ना कि वो आगे ये तो प्योर सेशन था, तो ये तो कुछ और चीज हो गई. मतलब वो वाली चीज कोई ऐसी किसी की अगर फीलिंग्स है तो आप किस तरह से मैनेज करोगे, क्योंकि अभी तो घंटे का एक सेशन ये चलेगा. And we all have been through all these things where we are not connected, या we are not really interested whatever is happening. ये आपके सोशल में भी होता है, या फिर घर के अंदर भी होता है, या आपके ऑफिस में भी हो जाता है. So how do you manage it? पहले आपने सेल्फ अवेयरनेस कर लिया, आपने अपने बारे में पोजीशन ऑडिट किया, आपको पता चल गया कि क्या पोजीशन है. फिर आपका होता है कि उसको मैनेजमेंट करना है, आपने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है. If you are feeling deflated, if you're not really into it, तो आपका अपना एटीट्यूड से आप बाकी लोगों को भी डाउन कर देंगे. आपकी एनर्जी लेवल डाउन होगी, बाकी सारों की एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाएगी. How you gonna manage it? That is another important point. Third is social awareness. आपका मूड बहुत अच्छा है, आपका मूड बहुत अच्छा है, बट बाकी सारों को कोई मतलब they are really really sad. उनको टेंशन हो रही है, डॉलर महंगा हो गया, पानी नहीं आ रहा घर में, कुछ और मसले हैं, कोई और चीजें. आप पॉजिटिव चीजें बोल रहे हैं, बट जो सोशल एनवायरनमेंट है दैट इज नेगेटिव. So you have to keep in mind कि जो आपका जो social environment है, what is it saying to you? So you have to respond accordingly. It cannot be कि आप दोनों को बीच में अलग से आप अपनी चीज कर रहे हो और वो दोनों का बीच में डिस्कनेक्ट हो. Third is, and this is the critical part, this is the essential part. किसने हाथ उठाया था इमोशनल इंटेलिजेंस सबका पता है? बेसिक्स पर. So आप कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, और आप इसके साथ समझा सकते हैं कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स सर यही जो आपने 4 चीजें बताई, ये नॉर्मली इसकी मेन पॉइंट्स है जो पढ़ने में आते हैं. अच्छा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक्चुअली पॉइंट ये है, कहने का ये होता है कि आपका जो लीडरशिप आगे भी आगे जाके होगा, वो जो सारी चीज कनेक्ट होती है, इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल. If you cannot understand कि जो सोशल अवेयरनेस आपकी नहीं है, आपकी अपनी अवेयरनेस नहीं है, अगर आपको मैनेज नहीं आप कर सकते,
और आप फिर लोगों के रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर सकते। आपसे एक बंदा गुस्से में है तो आप किस तरह से डील करोगे? यू नो हाउ वुड यू हाउ व्हाट वुड आप उससे और ज्यादा गुस्सा करोगे नहीं? वुड इट हेल्प कि अगर आप एक बंदा आपसे शाउट करके बोल रहे हो, आपको गाली दे रहा है और कुछ ऐसा से भी कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको ज्यादा गालियां दोगे? आप सबसे ज्यादा गालियां कब होती है पाकिस्तान में? आपने कभी नोट किया? गाड़ी लग जाए गाड़ी लग जाए रमजान में रमजान में ड्राइविंग जो होती है ना, बड़ी ऑकवर्ड किस्म की ड्राइविंग होती है, बहुत टेंशन वाली ड्राइविंग होती है। मैंने देखा कहते हैं वैसे रमजान वो वाला सबर का महीना सारा कुछ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने गालियां देखी है जब आप ऑफिस से लेट जा रहे हो और आपको पता है कि अफ्तारी का टाइम करीब है। आप पहली बात तो ये आप जिंदा पहुंच जाओ अफ्तारी के ऊपर, ये भी बड़ी बात होती है। फिर आप पहुंच के आपको पता है आपको गालियां जो सुनने को मिलती है, एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको उस पर होता है। सो दैट इज ऑल्सो, आप उस चीज में कैसे मैनेज करोगे? आपको पता है आपने सारा दिन से कुछ नहीं खाया हुआ, आपका मूड डिफ्लेट वैसे ही होगा, ऑटोमेटिकली होगा, पॉजिटिव तो नहीं रह सकता ना, तो आप उसको मैनेज किस तरह से करोगे सो दैट इट डजंट हैपन? सो दैट इज ऑल अबाउट वो है। अच्छा, इसमें मैंने एक आपको के लिए फर्दर एक चीज की, आप लोगों को ये नजर आ रहा है? कैन यू सी दिस? सो ये जो आज की जो पूरी प्रेजेंटेशन है, ये डैनियल गोलमैन, बाय द वे डैनियल गोलमैन का कितनों को पता है इमोशनल इंटेलिजेंस की एक बुक है? आप में से कितनों ने रीड किया? उसका शॉर्ट वर्जन आपने YouTube पे पढ़ लिया 5 मिनट वाला कोर्स में था नहीं करता। अच्छा, The guy is the same who wrote the goal. the book is emotional intelligence, EM. The guy is the same who wrote the book, the goal. तो गोल, आई गेस उसने गोल पे लिखी है, उसने फोकस अभी रिसेंटली लिखी है, फोकस भी उसकी उसी तरह से। सो ये जो मेन स्ट्रीम में आया है चीजें, डिस्कशन, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह, ये सारे डैनियल गोलमैन की इस बुक से शुरू हुआ। और ये प्रेजेंटेशन भी जो ये जो हम पॉइंट्स आपको शेयर कर रहे हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट्स है, ये डैनियल गोलमैन की ही बुकें हैं। आई एम टेकिंग अ स्टेप फर्दर। एक येल की इंस्टीट्यूट है इमोशनल इंटेलिजेंस की, और आप यूट्यूब पे करें, बड़े आराम से क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा। गो एंड सी दैट। उसमें जो उनके जो डायरेक्टर हैं उस सेंटर के ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के, हिज नेम इज मार्क उनका सेकंड नहीं आ रहा, बट मार्क ने एक पूरा एक आपको चार्ट बनाया, मूड मीटर। आपने मुझे बताया कि आपका पॉजिटिव मूड है, आपकी एनर्जी है, सो आप देखिए आप ये खुद अपना बना सकते हैं। ये आपका आ गया, ये प्लेजेंटनेस है आपकी, नीचे आपका आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आ गया, और आपका एनर्जी लेवल आ गया। अब मैंने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डाल दिया, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। सो नदीम ने बताया कि मेरी एनर्जी भी हाई है, रियली जैसे कहते हैं एनर्जी वाइज भी मेरी हाई है, और मैं आई एम इन रियली गुड मूड। सो ही वाज इन अ येलो क्वाड्रेंट, टॉप टियर। ठीक है, इसी तरह अब्दुल कादिर ने ग्रीन क्वाड्रेंट ग्रुप किया, फेवरेट या आप भी येलो ही होगा आपका भी। सो एक कोई था जो कि ग्रीन में था, आपका सॉर्ट ऑफ ग्रीन में से था, लेकिन आपने एंड में येलो कर दिया था। यहाँ पर आगे येलो हो गया, मैनेज कर दिया। सो अच्छा, तो आप किधर कौन से क्वाड्रेंट में रहना चाहेंगे? So who would fall in green? मैं आपको उस पर भी आ रहा हूँ। ग्रीन वुड बी कि जो कि बंदा who is happy, who is not feeling bad, but he is low on energy, who would, you know, आप हम सब इंसान हैं, हम सब की डिफरेंट वो चीजें चल रही है, तो वो वाला बंदा। सो अगर हम इसको देखें, आप मुझे बताएं इसमें से आप कौन से क्वाड्रेंट में हर वक्त रहना चाहोगे? येलो में हर वक्त? Not possible. Not possible. Not possible. It is not possible. चाहते हैं, yeah, that's a good idea. But it is not possible. आपके लव वन की किसी की डेथ हो सकती है, आपके फ्रेंडशिप ऊपर नीचे हो सकती है, घर के अंदर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आप इन सारों में मूव करते रहोगे। और जब मैनेज करने की बात आती है, तो जब आप येलो क्वाड्रेंट पे होंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा आपके लिए क्या चीज हो सकती है? प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है, लेकिन उस टाइम पे आप क्या किस तरह से यूज कर सकते हैं जब आपका जो आप लीडर
मैक्सिमम वर्क, क्रिएटिविटी, किसके काम की क्रिएटिविटी, जो आपकी क्रिएटिविटी वाला काम सबसे ज्यादा होता है आपकी लाइफ में, वो तब होता है. So it means Nadeem is a very creative person. so that is because वो येलो में अपने आप को ज्यादा रखना चाहते हैं. अगर आप में क्रिएटिव वाली चीज में आपका काम है इस तरह से, जिसमें से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या कुछ करना है, so this is the place where new ideas are generated. मार्क जुकरबर्ग वाली टेरिटरी है, स्टीव जॉब्स, मरहूम स्टीव जॉब्स, वो वाली टेरिटरी है. See, ड्रीम इज व्हेन जब आप कंसेंसस जनरेट कर रहे हो, क्योंकि आप ठंडे उसमें माहौल में हो, आप एनर्जाइज आपकी लो है, आप अगले बंदे की सुन रहे हो, आप अच्छा उसको फीडबैक दे रहे हो. सो दिस इज वेयर यू वुड बी गिविंग रिफ्लेक्टिव, उसमें से आप वो दे रहे होगे. तो ये आपके लिए तब है जब आप थोड़ा सा वो हो, ताकि आप उनके साथ आगे से कंसेंसस जनरेट कर सकें. ना रेड में आप कहोगे कि रेड में तो मैं आना ही नहीं चाहता. कोई है ऐसा कहते हैं रेड में तो मैं नहीं आना चाहता. हाँ, आ सकते. तो आप क्या करेंगे? काम को प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी से दूर रखें, यानी ऐसा टाइम हो शाम का या आपके घर का टाइम जिसमें हम नॉर्मली रेस्ट करते हैं. अच्छा देखिए, रेड में ना आपका, मैं आपको एक और एक इसमें से एक फर्दर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. Can you give me can you explain me the difference between jealousy and envy? Anyone? Jealousy क्या होती है और envy क्या होता है? पता है? Jealousy is like, for instance, you don't like somebody to do something, but to have something, but at the same time, you don't want that same thing for you. Envy is like, I'm feeling good about the other person, but I want the same thing for me. But जो जिसकी मैं आपको डेफिनेशन से बता रहा हूँ, jealousy is I have a brother. If anything happens bad to him, I have a wife. I would not want anything जो कि मेरे रिलेशनशिप से लिंक होती है, तो that is jealousy. सही. और जब मैं किसी की फ्लैशी कार, मैं जुनैद की गाड़ी देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार उनके पास तो बड़ी जबरदस्त है, मैंने नई होंडा सिविक निकाली, मर्सिडीज निकाली. आई एम लाइक, दैट इज एनवी, जहां मैं जल रहा हूँ. एंड हम सब ये इमोशंस हम सारे से गो थ्रू करते हैं. जुनैद की गाड़ी से हम सब जलते हैं. सॉरी, बट जस्ट सेइंग, सो वो एनवी हो जाता है. सो उसमें होता है, to see your car today. तो उसमें पॉइंट ये है कि जब आप इसका करते हैं, तो उसमें जो आपके लिए जो है वो ये है, जो जेलसी होती है, that can lead to be very aggressive. That could be, जो आपको ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं, वो जेलसी से नजर आते हैं. यानी अगर आपका बहुत ज्यादा किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो गया है, रूट कॉज उसका जेलसी कहीं ना कहीं आ सकता है, जिसमें आपका कोई लव वन या आपका कोई रिलेशनशिप है जिसको आप जिस तरह से रखना चाहते हो, या जैसे आपने आपके माइंड में था, वो वाली जो सिचुएशन है वो आपकी मिल रही है. You get what I'm trying to say? So jealousy and envy वाली चीज से आप गुस्सा से वो पे कर सकते हैं. Now coming back to the red का मतलब है कि it is कि आपको hatred नहीं है, but you don't you're not comfortable with certain thing. Like अगर कोई आपको पाकिस्तान के स्टेट में से बोले कि जी एफबीआई की कलेक्शन में से 20 करोड़ की आबादी में खाली 13 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं. बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि टैक्स और दे रहे होंगे, जो कि नॉन फाइलर होंगे, लेकिन फैक्ट तो ये है ना, फाइलर तो आई थिंक 13 या 14-15 लाख ही है. सो दैट मेक्स मी वेरी एंग्री. सो मैं उस रेड वाले जोन में आ गया, आप भी रेड वाले जोन में आ गए, क्योंकि आप टैक्स देते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए? टायर जलाने चाहिए, शीशे तोड़ने चाहिए, दूसरों को प्रमोट करना चाहिए, या आप टैक्स नहीं देना चाहिए? टैक्स नहीं देना चाहिए, आपने बोला Workout ways. वर्कआउट में. सो उसमें ये होता है कि जब आप ये वाली चीज होती है, तो देन यू दिस इज अ वेरी गुड opportunity for you to write about it, do something about it. जिसमें से आप चैनल आप क्रिएट करें, you debate about it कि why is it important. जैसे आपने किसी एक ने बोला था कि इसको, so you don't
आप अपने अंदर आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको मार नहीं रहे हो, क्योंकि आप मार नहीं सकते, आपके दिल में दिमाग में आके ना चीज, तो यू कांट किल इट। हम सबका अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, ये चीज दिमाग अपने उन पे चल रहा होता है। तो आप उसको नर्चर करते हो, आप नर्चर करके आप उसको पॉजिटिव तरीके से यूज करते हो। वन रिएक्शन इज कि आपने गाड़ी चला दी, आपने कर दिया कि हाँ 13 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, बाकी क्यों नहीं दे रहे। बट द अदर पॉजिटिव वे ऑफ गोइंग अबाउट इट इज that you write something, you find out how other countries are operating, direct taxation, why is it important? You have those intelligent conversations with a lot of people. So you convince other people. So that is this whole thing is This means that channelize your emotion. channelize your emotion. And the blue quadrant. So you are low on energy and you are low on. इसमें क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। नॉट अ बैड आइडिया वैसे, मौसम तो आजकल ऐसे ही है, लेकिन क्या करना चाहिए? जब आप लो ऑन एनर्जी हो और वो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप रिव्यू करो। आज का नेक्स्ट चाहिए, आज का ये 2 घंटे के सेशन के बाद आप ब्लू में आ ही जाएंगे, क्योंकि आप रेड से हुए थे, सॉरी इससे हुए थे, येलो से हुए, रेड से तो नहीं गए। जब 2 घंटे गुजरेंगे और ये लंबा सेशन चलता है, जितना लंबा जाएगा आप यहाँ ब्लू में आ जाएंगे। रेड में भी आते तो रेड में भी आ सकते हैं, आप दोनों भी कर सकते हैं। सो वो आपका टाइम होगा कि आप रिव्यू करो, मैंने लर्न क्या किया आज के सेशन, वाज इट वर्थ इट और नॉट, तो वो वाली चीज आपके लिए आ जाएगी। चलिए अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। नाउ डैनियल गोलमैन सारी चीजों के साथ ये भी कहता है कि उसने ना 2 लोगों का उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, बोथ हैड सेम एक्सपीरियंसेस, सेम एजुकेशन, सेम स्किल सेट। 20 साल के बाद एक बंदा बहुत आगे लाइफ में चला गया और एक नहीं गया। तो कौन सा वो बंदा था जो गया आगे लाइफ में? Who uses his emotions better? So ये वो चीज उसी को डिपेक्ट कर रहा है कि जैसे ये जो आपको मैंने इमोशन, ये जो मैप ये आपको मैंने बना के भी दिखाया। अच्छा, नाउ आप में से काफी ज्यादा लोग जॉब कर भी रहे होंगे, वो एस्पायरिंग, एंड वी हैव बिजनेस लीडर्स आल्सो जो कि अभी पैनल डिस्कशन में भी आपके साथ कन्वर्सेशंस करेंगे। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज। Do corporate organizations consider EQ when they hire and promote? Now the most of the multinational are considering EQ. Exactly. As compared to IQ. And blue chip companies are working on it. This As is something compared to that is IQ. coming up. So you would want to be working with a blue chip company or an MNC. एक अच्छी कंपनी में ही आपने काम करना है ना, कि छोटी कंपनी में तो आपकी एस्पिरेशन नहीं होगी। So जब आप अच्छी कंपनी में जाएंगे तो ये चीजें मेजर होंगी आगे। This is something that you have to ponder and have to think कि ये चीज खाली आप इसलिए नहीं कर रहे थे, रिक्रूटमेंट क्या भी अब ये प्रोसेस में आ गया हुआ है। एंड हम बिजनेस लीडर से भी इससे पूछेंगे। कॉर्पोरेट assesses emotional competence such as self motivation, empathy, conflict handling to identify how well you manage yourself and others. Why is it important that you manage others? Intellect with you. आपका कोई भी काम होता है, टीम का होता है काम, एक इंडिविजुअल तो कोई काम नहीं कर सकता ना, तो वो टीम का आप किस तरह से लेके चलते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं आपकी, ज्यादातर आपके कोई बच्चे ने किसी जॉब में गया हो, दिए किसी जगह साइकोमेट्रिक टेस्ट? We get for our potential applier. Fantastic. Quite a few years back, मैंने एक जगह पे जॉब कर ली थी, तो मैंने दिया था साइकोमेट्रिक टेस्ट। They keep on repeating those questions. अगर आपने किसी ने दिया हो, वो देखते हैं कि आप are you trying to just get out of the situation? आप consistent है वो रिप्लाई एक पर्टिकुलर एरिया पे। So वो क्यों वो चीज कर रहे थे, वो आपका इमोशनल क्वेश्चन चेक कर रहे हो, वो चीज असेस कर रहे होते हैं कि आर यू अ कंसिस्टेंट पर्सन। आपको वही चीज बार बार रिफ्रेश करके क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप एक जगह पे कह रहे हो कि ये है, दूसरी जगह पे आप कह रहे हो यू आर नॉट कंसिस्टेंट। So this means कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं फुकदा। For example, in an assessment center, you and other candidates may ask to complete a complex task quickly. The observers won't just look at the process you go through. They also want to know how you handle it, especially in organizations like Google, Amazon वगैरह, वहाँ तो होता ही है। आपको एक जगह पे डाल के और आपसे चेक करते हैं कि आप ग्रुप में किस तरह से चीज को रिजॉल्व कर रहे हो। So this is very important for your ये
जॉब लेने के लिए भी, जॉब के अंदर कैसे है वो अभी हम इंसानों से भी, लीडर से भी पूछेंगे, बिजनेस लीडर से, लेकिन जॉब लेने के लिए भी अब इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी क्रिटिकल। सो सबसे पहला सवाल हमने आपको पूरा ये समझाया, बाय द वे आपको समझ में आया सारा इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पूरा, आई होप ज्यादा तो नहीं हो गया था। सो अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, डू यू गेट हेल्प व्हेन यू आस्क? आप में से काम कितना कर रहे हैं? सो क्वाइट अ फ्यू आर वर्किंग राइट नाउ। सो आप जब किसी को कहते हैं कि जी मेरा ये काम कर दो, तो लोग आपकी काम करते हैं, कर लेते हैं। Subordinate. You mean your subordinate? Anyone. It could be your other stakeholder also. मतलब आपका stakeholder ये भी है ना कि आपका client है, आपने client को एक काम बोल दिया कि जी आप प्लीज ये हमारे लिए ये कर दें, वो हमारे मैनेजमेंट ये कह रही थी। So क्या वो आपका काम करते हैं? कंडीशन Exactly. That is what I want you guys to think, कि reflect करें कि क्या आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कहीं ना गैप तो नहीं था, where you know that person is not responding as per your expectations. Do you get prompt replies on your emails? अच्छा, वैसे मैं इसके साथ डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्स बैंकर, मेरे बड़ा क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि वो है, मैं खुद भी जब था तो मैं प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं करता था तो वो उसमें से, लेकिन वो होता ही है कि आपको ये भी समझना होगा अगला बंदा किस चीज से गुजर रहा है, क्योंकि अगर उसके पास डेडलाइन आई नहीं है, सो ही माइट नॉट, हाँ, तो उसके लिए अर्जेंसी में शायद वो डेडलाइन पहले होगी, वो पहले वो कंप्लीट करेगा, फिर वो ईमेल पे ज्यादा जाएगा, सो वो चीजें हो सकती है। डू पीपल वांट टू वर्क विद यू? मतलब आपको लोग कहते हैं कि जो भी अच्छा लीडर गुजरा है, बिजनेस लीडर गुजरा है, सबसे बड़ा तो वो GE के जो जैक वेल्च, दे यूज्ड टू इंस्पायर, लीडर्स आर दोज हु इंस्पायर, एंड यू नो वो वाली चीज आती है, अगर आपने वो चीज नहीं होगी तो वो आपको सीनियर पोजीशंस आपके लिए चैलेंज हो जाएगी। सॉरी, लीडर इज द वन हु क्रिएट्स लीडर। एग्जैक्टली, स्पॉट ऑन। Are you calm under pressure? आप प्रेशर होता तो क्या करते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले 2 साल पहले यहाँ ज़लज़ले टाइप के छोटे-छोटे से एपिसोड होते थे कराची में, so we were in Fortune Center, so हम देख रहे थे एक बंदे के सारों को ना कि कहाँ है क्या है, ताकि हम सारे पहले लड़कियां जाएं और फिर, क्योंकि लिफ्ट पे तो नहीं जाना चाहिए, जब ज़लज़ला आता है तो हम क्यों नहीं जाएंगे। हमने कहा यार एक बंदा गुम हो गया, बड़े परेशान, 5 मिनट उसको ढूंढते रहे और तब तक ज़लज़ला भी खत्म हो गया था। नीचे जब हम गए पता चला वो तो आधे घंटे से नीचे को बैठ खड़ा हुआ। दैट शोज कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी वीक थी। सही, उसने कहा कि जी लड़कियां भी कहीं बाढ़ में ज़लज़ला है, भागो नीचे, छलांग मारो, जाओ। So this is very important कि आप प्रेशर में कैसे, हाउ यू रिएक्ट। ज़्यादा खास था अभी यहाँ भी कुछ हो सकता है इस बिल्डिंग में, भी सकता है, लिफ्टें आपने देखी नहीं है इस बिल्डिंग की। आई होप कोई फंसा नहीं था, बट फंस सकता है। हाउ वुड यू रिएक्ट अगर आप लिफ्ट में फंसे हुए? एक तरीके से खोलो दरवाजा, तोड़ो, पाकिस्तानी अप्रोच ही होती है, बट वुड इट हेल्प? Would it help? So that is what I'm trying to say. So are you optimistic or doom or gloom? This is also, and ये रिफ्लेक्ट बाकी लोगों पे भी करती है। अगर आप कहते हो हाँ पाकिस्तान सही होगा, एक आजकल ही होती है ना डिबेट, पाकिस्तान यहाँ से फंस गया, ये हो गया चैलेंज हो गया, वो फलाना चैलेंज हो गया, और एक ये हो सकता है कि देखिए पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है, चाइना और पाकिस्तान ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये चीज हो रही है। सो थिंक पॉजिटिव जब होते हैं तभी चीजें अचीव होती है। If you have a negative mindset, you will never be able to achieve anything. Are you reliable, consistent and approachable? Consistent होना बहुत जरूरी है। Like मेरा बिहेवियर आपके साथ, अगर एक बार मैं आपको बात करूं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और फिर मैं बाद में बोलूं you know nothing यार, तुम्हें तो ये भी नहीं पता, तो बेसिक चीजें नहीं पता, तो how can you, तुम यहाँ आए कैसे थे, तुम्हारे पास क्या कैसे मतलब। So what happens is कि आपने अपना रिलेशनशिप बिल्कुल खराब कर दिया। और दिस इज नॉट जस्ट ऑफिस एनवायरनमेंट में, कल को आपका छोटा भाई होगा, आपके अपने बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों से किस तरह से अपील करते हो? आप एक जगह पे उसको मार्क्स के ऊपर आप जाके उसको गिफ्ट्स दे रहे हो,
और एक दो बार से उसके कम आ गए तो आपने उसको बहुत ज्यादा ताने देने शुरू कर दिए। That has an effect on kids. हम रियलाइज नहीं करते बट ये इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फीस लिखा हुआ है मार्क ने वो ज्यादा बच्चों के लिए ही है ताकि बच्चों को हम डेवलप बेहतर कर सकें। अगर हम नहीं कर सकेंगे तो चैलेंज होगा। इन हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट इन असर्टिव और एग्रेसिव, कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आप क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे बाय एंगेजिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? क्लैरिटी है। लिसनिंग, लिसनिंग इज द बेस्ट वो जो होती है कम्युनिकेशन, जिसमें से आप एक दो लफ्जों में समराइज सारी चीजें कर दो। इम्प्रूव योर EQ, अभी हम सीधा इसको जल्दी करेंगे क्योंकि वी आर स्लाइटली बिहाइंड दिस शेड्यूल। इम्प्रूव योर EQ, प्रैक्टिस ग्रो सेल्फ अवेयरनेस, ये हमने सारा आपको टूल्स बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गए हैं। Listen, let go and of the needs, always be right. Don't judge. हम जज बहुत करते हैं। हम ये भी जज कर देते हैं ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा, मतलब ये अल्लाह ताला है ना। कुरान में आया है ला युश्रिकु फी हुक्मिही अहदा, and the Lord shares his jurisdiction with no one. सूरह काफ में। So अल्लाह ताला में का तो निजाम ऐसा था कि जो पैगंबर हजरत ईसा वो जिंदा करते थे, जो उनका मौजूदा था, तो हजरत ईसा कहते थे बिस्मिल्लाह, राइज इन द नेम ऑफ अल्लाह ताला। वो खुद नहीं कहते थे क्लेम, उनका ये नहीं था कि मैं आपको जिंदा करूं। हम यहाँ बन के हम जज कर लेते हैं कि जुनैद इज अ फैंटास्टिक पर्सन, नहीं जुनैद बहुत बुरे हैं, तैमूर बहुत अच्छे हैं, तैमूर बहुत बुरे हैं। वी आर नो वन टू जज एनीवन। आपको जो मेरा अभी डिमीनर नजर आ रहा है वो मेरे सर्कमस्टेंसेस भी रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके। सोशल जो हमने कहा था ना, वो बैलेंस अगर होता है तो फिर मेरे डिमीनर पे आ जाता है। अगर आपको एक बंदा डिफरेंटेड लग रहा है, इट मीन्स कि आपको उसके साथ ज्यादा टाइम गुजारने की जरूरत है। इट मीन्स कि he or she might be going through a difficult time right now and you need to understand that. Pay attention to language. लैंग्वेजेस किस किस्म की बात होगी? एक तो आपके ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, और क्या हो सकती है लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। एक बंदा आपको लग रहा है डिप्रेस्ड है, एक बंदा आपको उदास लग रहा है, एक बंदा आपको लग रहा है खुश है, तो आप तो उसी लिहाज से अपनी कन्वर्सेशन को मोल्ड करेंगे। समझ में आई आपको? सो इम्प्रूव योर EQ। हियरिंग वाली मैंने आपको बताया, एक्टिव लिसनिंग वाली बात, ऑब्जर्व हाउ पीपल रिएक्ट टू पीपल, ये भी बात हो गई है। हाउ यू मच रश जजमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कभी भी जजमेंट जल्दी से, पहली बात तो जज करें ना किसी को, बट जब हमसे फीडबैक लिया जाए तो हम एकदम रश ना करें। गिव इट अ टाइम, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, क्योंकि ये हमारी ऑलवेज पॉलिसी वाले में हम फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह से। तो हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए। Seek to understand other people's motivation, why they are acting. जैसे मैंने कहा, मूड अगर किसी का खराब है, try to understand किसकी बॉडी लैंग्वेज क्यों खराब है। Listen, let go of the need be right and don't judge. एक वीडियो है, लेकिन I don't think we need to go through. I think we can just request the business leader and thank you very much. आपको वैसे मजा आया, enjoy किया? नहीं, ऊंचा आवाज से आगे इससे ये तो आप बिल्कुल यहाँ अभी तक पहुंच गए, पहले डिस्कशन बाकी है। How long is the video? वीडियो इज लाइक 5 to 10 minutes, तो मैंने इसलिए कहा था कि 5 to 6 minutes है। एंड में लगा चलो ये। So I'll request Nadeem, who is Chief Operating Officer Farmigo, to join us and actually explain his experiences and explain why emotional intelligence is, why is it important. So Nadeem, I would request you कि आप सामने आ जाएं। I would request Abdul Qadir, who is Financial Controller Al Falah Bank, online banking, digital banking. So a very warm applause. By the way, after the cafe qualified accountants, so Abdul Qadir is a chartered accountant as well. And I don't think I would have to introduce Junaid. So Junaid. So जब फ्लो होगा ना इसके कन्वर्सेशन का, मैं एक आध क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, बट
we would like it to be interactive. सही है? The way it works is interactive का मतलब है कि आपको भी सवाल करने होंगे. सही है? आपको उनका फीडबैक लेना भी होगा. So just think about it कि आप कौन सा सवाल करेंगे और आपको मैंने तीनों की प्रोफाइल भी बता दी है. किससे क्या मैं सवाल करूंगा. Just plan it. जैसे अभी हमने जो सारी चीजें बात की उसको माइंड में रखते हुए आप करें. So my first question would be for Nadeem. Nadeem, Farm-Evo, a pharmaceutical huge company and a big conglomerate because Shield का आपको ने सुना होगा. It's the same group. Shield, Farm-Evo, group एक ही है. So आपके पास तो बहुत ज़्यादा मैन पावर होगी, human capital होगा. 5,000 है. तो आप what are those things that you look in an individual? If in any one of them are joining Farm-Evo, जैसे मैंने कहा कि वो प्रिपेयर होके आते हैं, what should they expect from Farm-Evo and from you as a मतलब कि what are those things that you are looking for? If they come to us, थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलोगे, I'm sorry क्योंकि वो भी है. कैंडिडेट के तौर पर कोई आता है तो आपका सवाल ये है. कैंडिडेट के तौर पर आता है और आ जाता है, उसकी जॉब हो जाती है. So what are those things जो कि आपके लिए बड़े क्रिटिकल हैं? मतलब एक तो टेक्निकल साइड तो कवर्ड हो गई कि आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंस हो गई. How relevant is emotional intelligence for Farm-Evo from hiring to those person? Well, emotional intelligence तो हमारे ग्रुप में बहुत ही important है. And I always regarded EQ as the most important factor because हमारे chairman साहब इब्राहिम कासिम है, and we call him EQ as well. So ये तो for sure है कि EQ rules in our group for sure. But on the other side, he is a living example of EQ as well. रेड्डी को जानते हैं, कुछ और लोग भी हो सकता है जानते हैं because पाकिस्तान business industry के माशाल्लाह one of the most renowned and respected person. बहुत ही compassion के साथ वो behave करते हैं अपने समाज लोगों के साथ. Coming back to your question, मैं Farm-Evo को represent करता हूँ जिसमें तकरीबन कोई 2,500 लोग काम करते हैं. बाकी 2,500 ग्रुप की बाकी कंपनीज में काम करते हैं. So I represent a company where 2,500 people are working, and I look after the manufacturing part of the Farm-Evo, where we have almost 600 people working in the facility. EQ पे आपने बात की, कुछ लोग आपके पास ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होती है. To me as an individual मुझे लगता है कि EQ is हमने पढ़ भी लिया और माशाल्लाह इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया हमें EQ और DI और Daniel Goleman, सब लोग उनको जानते भी हैं उनको. This has become rather more important factor than other intelligence, your intellectual intelligence. तो और ये बैलेंस है, बैलेंस ऑफ योर पर्सनैलिटी, बैलेंस ऑफ योर इमोशन. इन्होंने तो बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन किया जो मुझे समझने में जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था आसानी थी. इट्स योर एबिलिटी, पहली बात तो ये हम तय कर लें कि इट्स योर एबिलिटी जो हमें डेवलप करनी होती है, ये खुद से नहीं होती है. इट्स योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स, एंड देन यू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मैनेज योर रिलेशनशिप. अभी रिलेशनशिप की एग्जांपल बहुत जबरदस्त बुक में भी मौजूद है, अदरवाइज भी है कि आप दो एक जैसे लोग थे, they were equally good in academics and studies. एक का इमोशनल जो इमोशनल क्वोशेंट है या इंटेलिजेंस वो बहुत अच्छा था. he was able to build relationship, friendly था, loving था, passionate, caring और highly motivated और empathize करता था अपनी टीम के लोगों के साथ, चाहे वो peers हैं चाहे बॉस हैं. Like मैं अपने बॉस के प्रेशर को empathize करता हूँ क्योंकि आजकल बिजनेस में प्रेशर इतना ज्यादा है. At times, I can understand his body language, I can understand his language as well, verbal communication as well. मुझे लगता है कि ये बहुत ही important है जब टीम बिल्ड होती है. और ये हम सब लोग जानते हैं, मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि टीमें जीता करती हैं. Doesn't matter, हो सकता है हमें से कुछ लोगों ने ग्रेड का कोर्स किया हुआ हो, अगर वो इससे वाकिफ हो. ग्रेड फॉर लीडरशिप स्किल एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में भी वो होल्ड करते हैं. I was one of the participants of the training. So grade is all about how you manage your relationships. Leaders के लिए relationship को manage करना और अपने skills को use करना
कदर इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप अगर लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे, ये जो 4-5 क्वेश्चन आपने पूछे, these were extremely relevant question. आपको लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, if they do not respond, think about yourself, why they are not responding to you? This is you who is important. लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो खुश हैं या नहीं है, ये तो बहुत इजीली गेज करते हैं, हम सबको पता है. Don't tell me, but ask yourself this question. लोग आपकी हेल्प करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे आपको हम हर आदमी को मैं हर गेज करने में बड़ी आसानी होती है कि यार मैं कितना डिजाइड आदमी हूँ, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कंपनी में. अच्छा, कंपनी में भी कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं लोगों के, तो कुछ लोग बड़े ग्रुप्स में होते हैं, कुछ लोग 2 लोग अलग होते हैं और वो उनकी अलग से एक माइंडसेट होता है. तो मुझे लगता है कि ये इस कदर इम्पोर्टेंट स्किल है और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. मुझे भी चीजें रिफ्रेश हुई, मैंने नई चीजें भी सीखी. और जिस तरह ACCA और MPF केयर कर रही है कि नए लोगों को ये उभरती हुई जो साइंस है, ये नॉलेज है, उससे अवेयर किया जाए. कि जो whatever we do all around us is all about EQ. तो इस पे अंडरस्टैंडिंग होना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और दूसरे के इमोशंस और सिचुएशंस को भी समझना इतना जरूरी है. आई थिंक दिस हैज बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और वेरी गुड इनिशिएटिव. Thank you very much, Nadeem. I have a slightly different question from you, Khalid. मैं आपका देख रहा हूँ प्रोफाइल, आप हैं टेक्नोलॉजी वाले साइड में, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी की आपके बाय द वे मैरिज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ब्लॉकचेन जो चीजें आ रही हैं, फ्यूचर ऑफ आपका पूरा चेंज हो जाएगा बैंकिंग का. आई थिंक इन अ डेकेड और सो पूरा एवरीथिंग विल बी ट्रांसफॉर्म. Now there is an employee side जो कि नदीम ने भी पूरे अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ हो गए सारे बच्चों को. I want to know the customer psyche because there is another side में stakeholders की बात करते हैं तो उसमें customers भी आता है. Now banking customers from my mom, she would not use online banking. You know, she has to have her check, उन पे sign होगा और वो होगा, and that there is a relationship side of it. अगर 10 साल में वो branches ही नहीं होंगी और ऐसा लग रहा है अगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी करता है, so how would the business side of it be affected because there is an emotional linkage with those relationship managers जो branches में होते हैं, जो कि हर जो बुजुर्ग लोग होते हैं या आपका भी होता है जिनके साथ आप कॉल करते हैं, just ask them कि do this do that and they are there कि we are there for you, we will help you out. So how do you see that changing from business point of view? Yeah, thank you so much first of all for the invitation and thank you so much whenever we think of the strategy of going from totally brick and mortar model to a totally digital model in the banking and financial services, I think the first thing that comes to our mind is the same experience that our older generation customers have, right? So there's no thought in any boardroom of the banks to actually let go of the branches. So the branches will remain. What would be done is whoever wants to come in the digital world, they will have the option. Currently, there are very limited options, but these options will obviously increase as time passes by. There was initially this technology where we used to use the ATMs because there was 9 to 5 banking and we used to have these cash requirements. So then we developed the ATM, then we had the internet banking, now we have got the app. Now recently we have developed an app where we have integrated with the food ordering as well. So you can order your food from going into the Bank Alpha app. You don't have to go to any other app, you can order food there. So there would come a time when you can even book your dentist appointment or your doctor's appointment, or you can even book a movie ticket, a bus ticket, whatever you want. So that would be done. But as far as your question regarding branches is there, that would obviously remain. The number of branches will obviously go down, as is the case in other countries. In Australia, we've seen a lot of banks which have gone branchless. They've got their own locations where you can obviously deposit the cash and take your cash out, but they are not their branches, right? And that is obviously the case with a lot of branchless banking players here in Pakistan with Easy Paisa and Jazz Cash. So that model is obviously working, and in the next, as you mentioned, in the next 5-10 years, we'll obviously see a lot more digital happening in the financial services.
and a lot more lifestyle services being embedded in the apps rather than people going to the branches and getting things done. Fantastic. When we started this session, मैंने थोड़ा राम साहब से पूछा था, it has to be an interactive session. Let me have one question. So, interactive is, जी Abdullah. I have a question from Junaid bhai. Junaid bhai, ऐसा बहुत अक्सर होता है, हम सबके साथ होता है कि हमारे जो बॉस होते हैं, गेस्ट जो आ रहे हैं, वो हमारी पेशेंस को इस हद तक टेस्ट कर लेते हैं कि कभी कभी तो दिल चाहता है कि आदमी उठा के उसको मार दे। ये हमारे सेशन में की बात है। बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस में यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन। तो दिनेश भाई आप बताएं कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन भी जाता है व्हेन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क विद दैट बॉस, हाउ यू शुड कोप अप विद योर इमोशंस? Thank you. I'll address this question later on, but first let me build up certain conceptual thing about what emotions are and how we can bring emotions into place to build up our career and make more pleasant our professional life. Let me start by asking a question from all of you. How many times we have noticed in our workplaces that people of lower intelligence outperforming people of much higher intelligence in our workplaces? Have you come across these situations? Yes. I think many times. I think we come across these situations in our workplaces most of the times, if not many. And what's the answer for it? Why this is so that people of lower intelligence outperform people of much higher intelligence? So basically, they better manage their emotions. Obviously, the answer is emotion. They are better managed in terms of emotions. They are better in control of their emotions. Bringing it down further, what are emotions and how we can actually link it to intelligence? Emotions, as we all know, are the feelings of sadness, joy, fear, happiness, which we experience all of the time, every minute, every hour, every week, all of that during the day. And there are certain variable factors which are actually affecting these feelings of emotions, which are our surrounding, our environment, our political scenario, our mood, etc. So basically, it's a combination of both our own emotions and the certain variable factors affecting these emotions. Let me put it another way. If you have come across stories or biographies of successful people, so you will actually find one thing very common in all stories of all the successful people. They are better off in terms of managing their emotions. What they do is basically they have mastered the art of managing their emotions, and they not let their emotions actually take control of themselves and sabotage them. So it's basically the choice is ours. There are two options basically. Either you take control of your emotion and the situation, or you let your emotions take control of yourself and the situation. So I think one approach is a reactive approach, and one approach is a proactive approach. I would like to answer that question. Sorry. So I was just trying to build up, the scenario of, instead of directly jumping on the answer, I was just trying to build up a scenario. So even if, moving further, if we talk of emotional intelligence or emotional quotient, there are two competencies. One is relating to personal competency, and the other is relating to social competency. Personal is relating to our behaviors, and social competency is relating to managing the behaviors of our surroundings. And if you dissect it further, deep down, primarily there are three competencies or three quotients: PQ, personal quotient; IQ, intelligent quotient; and EQ is an emotional quotient. So the first two, PQ and IQ, have very less flexibility. Sorry, मैं आपको बात कर रहा हूँ ACC की theme में उसमें DQ is also very important, digital quotient. आगे फिर AI भी आ गया। So the digital quotient is that it's transforming everything. वो ACC का में the way we operate, organizations का पूरा mix ही change हो रहा है, काम करने के style सारे जगह हो रहे हैं। तो अगर हम उसको accept नहीं करेंगे अभी से, जैसे emotional quotient को, so we will be a dinosaur. The first two जो है, जो person है और intelligent quotient है, उसको I think they've got a very less flexibility, जो आपको inherited होता है, जो 4-5 साल में जो आपकी personality develop हो जाती है, वो change नहीं होती। लेकिन emotional जो EQ है, वो highly flexible. But the first thing is to actually recognize the importance of EQ,
focus on EQ and actually have to master the art of managing your EQ. Now, coming back to the question that Abdullah asked, there are many situations like these that we face in the workplaces. One of the classic example of workplace or a friendly scenario is all of a sudden a friendly disagreement converts into a fierce argument. बहुत सारा आंसर होता है, चाहे ऑफिस में बैठे हों, चाहे हम फैमिली के साथ बैठे हों या फ्रेंड्स के साथ बैठे हों, तो एक फ्रेंडली सा डिसएग्रीमेंट होता है या ओपिनियन होता है, चाहे पॉलिटिकल और फिर हम उसको देखते हैं ऑल ऑफ अ सडन बहुत फ्लेयर अप हो जाता है, इट टर्न्स अप इनटू अ वेरी फियर्सफुल आर्गुमेंट. और चाहे इट्स अ इक्यू सिचुएशन, इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन, तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं? May I go to the audience, what are the ways how we actually deal with that kind of situation? Any volunteers? डिस्कशन को ही बंद करते हैं. ठीक है, ओके, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, और एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप उसको उस सिचुएशन से आइसोलेट हो जाओ, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने आप को कहीं और ले जाओ ताकि आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ. टॉपिक चेंज एक चीज ऑनलाइन वाले भी आप प्लीज क्वेश्चंस हम डालें, हम पैनल से पूछेंगे. सो ऑनलाइन वाले जितने भी सुन रहे हैं प्लीज डू गिव योर फीडबैक एंड क्वेश्चंस आप डालें ताकि हम पैनल से पूछ सकें. So first thing is like you come across many situations where you have to manage your own emotions. ठीक है, तो इसमें जो ये कंडीशन में जो बताया था उसमें आप ये कर सकते हैं कि you can just simply divert the subject, you can simply walk away from the situation, or you can just keep quiet for the time being. दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आप कोई काउंटर पार्टी के साथ आप कोई डील कर रहे होते हैं या डिस्कशन कर रहे होते हैं या आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, all of a sudden the behavior becomes very irrational, and that arises because you start feeling that that person is emotionally very charged. और वहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन में जा रहे हैं आप किस तरह से आप बिहेव करते हैं, आप ये करते हैं कि आप जब तक उसका बिहेवियर नॉर्मलाइज नहीं होता, तो आप अगर आप खुद आप देखें उसमें चैलेंज जो होता है कि आपको अपने इमोशंस को चेक रखना है. अगर आप इमोशनली चार्ज अप हो जाएंगे, फ्लेयर अप हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली टू नेगेटिव्स ऑब्वियसली व्हाट कुड एक्चुअली इट कुड ब्रिंग अबाउट. सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इमोशंस को चेक में रखना है, और उसके बाद आपके सिचुएशन को इस तरह से कंट्रोल करना है कि आप तो टॉपिक को चेंज करें या डिस्कशन को चेंज करें, यू वॉक अवे और यू कीप क्वाइट फॉर द टाइम बीइंग till that person is emotionally settled down. Very right. In fact, Daniel Goleman कहते हैं ranting fallacy. यानी मैं अगर आपसे चीखें मार के बात कर रहा हूँ या बदतमीजी कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ वो करेंगे, तो होगा ये कि वो कनेक्ट करके ना आपकी कोई और नेगेटिव थॉट को वो उससे कनेक्ट कर लेंगे. पहले तो आप मेरे पे उतारेंगे वो सर, फिर आपका कोई और चीज को पुराने आपको शायद घर में नाश्ता नहीं मिला हुआ है, कुछ नहीं हुआ हुआ, जो आपको बग कर रहा है, वो भी आपका इमोशन के अंदर होके वो फिर आपके वो चीज डिपिक्ट कर रही होगी जो कि आप हैं. सो वो you have to manage it very you have to be very careful. Sorry, आप my answer to that question was कि there's a big debate कि एक सवाल ये है कि क्या हमें गुस्सा आता है या हम गुस्सा करते हैं. So how many people feel कि हमें गुस्सा आता है? आता है तो fans point of view को आता है. तो majority feel कि हमें गुस्सा आता है. So I'll give you an example for that to understand कि दोनों के pros and cons क्या है. So let's assume Junaid Saab is my boss and he gets angry at me, right? And मुझे बहुत सारी बातें सुना रहे, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम किसी काम के नहीं हो, XYZ. And what do I do? मैं क्या करता हूँ? खामोश है कि क्यों? दिल तो चाह रहा है बोलने का, बट नहीं बोल पा रहा. क्यों? कि बैक ऑफ द माइंड ये है कि यार बॉस है, नौकरी नहीं मिल रही कहीं और, बहुत हालात खराब हैं, क्या करूंगा यार, पीयर प्रेशर है, दोस्त क्या बोलेंगे पता नहीं, क्यों इतनी जॉब छोड़ दी, घर वाले बोलेंगे पता नहीं पागल है, क्या किया इसने. एंड देयर वर्सेस क्या मेरा बेटा आता है और मैं बैठा हुआ हूँ मोबाइल पे एंड वहां मेरा मोबाइल छीन के ले जाता है एंड मैं उसको जोर से स्लैप कर दूं. तो दिस सिचुएशन वर्सेस दैट सिचुएशन, क्या हमें गुस्सा आता है या हम गुस्सा करते हैं? आंसर इज कि हम गुस्सा करते हैं, हमें आता नहीं है. वी कैन मैनेज इट. सेम सिचुएशन, मतलब मैं ही वो बंदा हूँ एंड दोनों सिचुएशन है कॉन्ट्ररी. बट यहाँ मैंने बच्चे को मारा क्यों, मुझे पता है वो आगे से बढ़ के मुझे नहीं मारेगा, बट यहाँ मुझे पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. सो दिस इज द होल डिबेट. यार मैं अपने इमोशंस को उस तरह मैनेज करूं, यार मैं सिचुएशन में हूँ, और 99% टाइम्स लोग करते हैं. तो अगर हमने प्रेजेंटेशन देके समझा कि हमें बहुत कुछ नहीं आता, तो आप लोगों को आता है चीजें. यू हैव बीन डूइंग दिस सबकॉन्शियसली, मतलब हमें पता नहीं है कि यार अच्छा मैं इमोशनल इस तरह मैनेज कर रहा हूँ, क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज, बट आप कर रहे हो. आप अपने पेरेंट्स को, पीयर्स को, कॉलीग्स को बहुत सारी चीजों के लिए कन्विंस करते ही हो ना, आप यही टेक्निक्स यूज कर रहे हो. इट्स नॉट कि थिंग्स आर
वेरी बैड। ऐसा ना लोग सोचेंगे यार अच्छा आज मैं सेशन में आया हूँ यार ये तो इमोशनल क्वेश्चन ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था यार मैं तो बहुत पीछे रह गया। तो ऐसा नहीं है, सबकॉन्शियसली यू गाइस आर मैनेजिंग दीस थिंग्स। करना ये है कि हमने यार वन स्टेप अहेड जिन एरियाज में या जिन चीजों में डिफिकल्टीज आ रही है उनमें हम खुद को कैसे बेहतर कर सकते हैं, दैट इज द होल आइडिया। Referring especially to what Abdul asked, at times what we do is, we what most of the time, so 100% of the time, we actually start focusing on, the boss is doing this, boss is doing that. We actually don't focus on why he's doing this. So हम अपने आप में नहीं देखते एक्चुअली कि क्या मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है या मेरे अंदर कोई वीकनेस तो नहीं है, मेरे अंदर शॉर्टकमिंग तो नहीं है, जिसकी वजह से that actually bring him to that situation that he becomes emotionally charged up. So I think it has to be a two-way traffic. मैं आपको एक real life situation बताता हूँ. When my first job was with UPL, so एक बंदे का जैसे होता है कि आप जैसे आपने कहा आपने उसने suppress करके रखा. He got a job opportunity on Mashreq Bank में UPL से. I'm not going to name the guy. वैसे भी इतना पुराना है किसको याद होगा वैसे, लेकिन तो उनकी जॉब हो गई कहीं. ठीक है, अब वो बॉस वो had also issues. ऐसा नहीं है कि बॉस अच्छा बन रहा था, मैं ये नहीं कह रहा. But I'm saying कि he had lot of issues. But वो ज़्यादा वो conversations भी नहीं करता था. We shy away from having difficult conversations. हमारे bosses भी शायद कभी-कभी नहीं करते और हम भी नहीं करते, हम भी नहीं पूछते, हम प्रोब नहीं करते कि क्या है, जैसे जुनैद ने कहा. तो वो ये कि वो चले गए मशरक बैंक में, जब जाते हुए उन्होंने रेंटिंग जो किया फुल सुना के पूरे ऑफिस को सबको पता था. And he gave a piece of his mind and heart and everything. और बहुत कुछ उनको सुना के चले गए. अच्छा, little did he know कि 2-3 महीने बाद में आपने तो अपना बेंट तो निकाल दिया, आपने तो अपना जितना भी था 3-4 साल का जितनी फ्रस्ट्रेशन थी सारी निकाल दी. तो उनको पता चला कतर में कि कतर था कोई तक मिडिल ईस्ट की कोई जगह थी. तो एक पाकिस्तान से एक और बंदा आ रहा है and he will be his boss. Little did he know कि वही बंदा उसका boss है. So it's a small world. पहली बात तो ये always count your chicken before they hatch वाली बात ना करें आप. आप just see कि आप try to imagine कि वो बंदे से आपका खत्म नहीं होगा. आपका अभी हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ है, you met Nadeem, you met Kader, you met Junaid. आपको किसी न किसी और फॉर्म में आपका इनके साथ फिर से आपका इंटरेक्शन होगा. इसी तरह बहुत सारे अभी ऑनलाइन पे भी देख रहे हैं, उनका भी इंटरेक्शन होगा. सो जब आप रेंटिंग करते हैं और आप क्लोज करना बहुत ज्यादा रिस्की होती है स्ट्रेटेजी, बहुत रिस्की स्ट्रेटेजी. लेकिन सर जो आप जो बना रहे हो एक तरीके से सही है, लेकिन इट इज अ मटेरियलिस्टिक अप्रोच. एक रिलीजियस अप्रोच में ये होता है कि किसी बंदे के साथ नाजायज हुआ तो वो बंदा बर्दाश्त करता है, तभी उसके लिए जन्नत में जगह है. अगर वो बंदा ले सकता है और नहीं करता, इसलिए इसके लिए सेंटर ऑफ द जन्नत है. और अगर नहीं करता, बर्दाश्त वैसे करना है और उसको मजबूरी है, तब भी उसके लिए जन्नत में जगह है. अगर उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं अगर आप उसको करते हैं, दैट इज आपकी उसमें बड़ी बिल्कुल सही बात है. एंड दैट इज सो ट्रू बिकॉज हमारे जब हम एम्पैथी की बात करते हैं, जितने रिलीजन हमारे एम्पैथी पे एम्फसाइज करता है, वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम वो वाली चीज भूल जाते हैं कि हमारा रिलीजन जितना एम्पैथी की बात करता है शायद ही कोई रिलीजन करता हो. हकूकुल इबाद क्या है, हम सायों तक के हक है, बट आर वी फॉलोइंग दैट, आर वी ट्राइंग टू वर्क ऑन इट ना, वो चीज नहीं मिलती. कुरान में आता है कि आप ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते. आप जो कन्वर्सेशन जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम अपना इतना इंटरप्ट कर दे कि जो अगर मेरा किसी से आर्गुमेंट भी है, आई विल लोअर माय वॉइस, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, बट एक इस तरह से सिविलाइज्ड तरीके से बताऊंगा. थिंग्स बिकम, मतलब सबर का मतलब ये नहीं है कि आप खामोशी हो जाए, आप उसको जो है हाँ सही तरीके में उसमें भी आप बयान कर सकते हैं. बिल्कुल. एक और चीज जो जैसे कि ये डिजिटलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं इंफॉर्मेशन से. अच्छा, मुझे सवाल ये कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस की नॉलेज में किस तरह आदमी लग रहेगा, उसके लिए इंटरेक्शन जरूरी है. जब आप इंटरेक्शन में आएंगे जब भी आपकी प्रैक्टिस होगी. तो ये अब जो डिजिटलाइजेशन हो रही है या ऑटोमेशन हो रही है, वो इंटरेक्शन को कम कर रही है. उससे क्या आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में फायदा है? मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस नया टर्म है, पहले ये कॉमन सेंस कही जाती थी, और नाउ कॉमन सेंस इज लेस कॉमन. सर हमने एक रिसर्च है मिलेनियल्स, क्योंकि आगे जो फ्यूचर में जो मिलेनियल्स है,
सो उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट का आ रही है, बाहर की रिसर्चेस बता रही हैं। जैसे हम जिस माइंडसेट से थे जब हमारी पहली जॉब हुई कि गाड़ी लेनी है, फिर शादी करनी है, वो होना, उनकी जो हायरार्की है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि करीम पे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, ऊबर है बाहर के मुल्कों में भी। सो दे वुड नॉट वांट टू वेस्ट लाइक लेट्स से 1 मिलियन ऑन अ कार। अभी जैसे मार्केट गिर रही है, दे माइट इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट्स, वो उसकी इनकम भी कमाएंगे और वो बीच में उनको दे आर मच स्मार्टर देन अस। आप किसी कॉलेज स्टूडेंट से बात करेंगे, उनको पता होगा करीम का कौन सा पैकेज अच्छा है, ऊबर में कैसे चल रहा है, एंड दे नो हाउ टू एक्चुअली यूटिलाइज गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। सो वो जो है, और अब उनकी डिमांड्स को देखते हुए आपको देखिए रेवोल्यूशनाइज कितना हो गया कि आपका सबसे बड़ा रिटेल स्टोर कौन सा है? दलाल नहीं है, अलीबाबा सबसे बड़ा आपका रिटेल स्टोर, ब्रिक एंड मॉर्टर की हम एग्जांपल दे रहे हैं, एंड दे आर सेटिस्फेक्शन कस्टमर लेवल को गेज कर रहे हैं। जब आप कभी कोई खरीदते हैं दराज पे भी खरीदते हैं या कोई होते हैं, वो दे हैव दैट कांस्टेंट फॉलो अप, वो पूछते हैं कि वो दे इंश्योर कि आप खुश हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपकी वो वाली चीज को मिस कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि आपका अब सारे मॉडल चेंज हो रहे हैं। सबसे बड़ा दुनिया का होटल कौन सा? एयरबीएनबी। एयरबीएनबी आपका बेसिकली आप अपने घर में एक कमरे को रेंट पे देते हो, दैट्स एयरबीएनबी, और वो दुनिया का सबसे बड़ा होटल है विदाउट ओनिंग वन बिल्डिंग। इसी तरह आपका जो उबर का मॉडल है, आपका एक कार नहीं आप ओन करते हैं, आपका एक नहीं होता, लेकिन आपका सबसे बड़ा उस तरह से अमेज़न सबसे बड़ा आपका बुक्स का रिटेल स्टोर, वैसे भी रिटेल स्टोर अमेरिका का अमेज़न बहुत बड़ा बन चुका है। दैट इज ऑल, दैट इज द फ्यूचर। जो मैंने बात की थी डिजिटल क्वोशंट की, आई एम अ डायनासोर माय सेल्फ, मतलब मैं खुद जो, मेरी वाइफ सारी मेरी एप्स चलाती है, मुझे आई एम सॉरी जी, आप तो टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं, लेकिन मुझे पता मैं नहीं करूंगा तो मेरी चीजें आगे नहीं चल सकती। सो वी हैव टू अडैप्ट आवरसेल्फ, वी हैव टू। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि हम इमोशंस तो हम रीड करते हैं जब लिखते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इमोशन। जब हम नेक्स्ट एरा में एंटर होने जा रहे हैं तो बहुत स्पीड से, यंगर लोग तो ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं और वी आर होपिंग एक दिन मैं भी एंटर हो जाऊंगा, उसमें इंटरेक्शन बड़ी कम होती जा रही है। जब कम होती जा रही है तो वी हैव लेस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अदर इमोशंस। हम किसी ईमेल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, किसी फीडबैक फॉर्म के थ्रू रिस्पॉन्ड करेंगे, हम किसी सर्वे पे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो वाली कैपेबिलिटी अभी मुझे लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग हमें डेवलप करने की, हो सकता है एग्जिस्ट करती हो, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है कि हम सर्वेज को फ्रॉम इमोशन पर्सपेक्टिव कैसे रीड करें, फीडबैक्स को, ईमेल्स को कैसे। कल रात मैंने किसी कस्टमर की ईमेल जो कि वेबसाइट पे सामने मेरा ईमेल आईडी जो कि दिया हुआ है, जब किसी को और कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो वो मुझे ईमेल डाल देते हैं डायरेक्ट, एंड उसको मैंने प्रायोरिटी पे हैंडल किया। मैं विद इन 3 मिनट्स मैंने जब पॉपअप हुई तो मैंने कहा पहले इसको रिस्पॉन्ड करूंगा, और उसके 10 मिनट बाद उसकी रिप्लाई, ही वाज सो ओवरवेल्म्ड, उसका सारा एक पेज का गुस्सा जो है वो खत्म हो गया। उसने कहा कि आप थैंक यू वेरी मच, मेरी तो सारी टेंशन खत्म हो गई, और आपने इतनी जिम्मेदारी से रिस्पॉन्ड किया, आपने एक्शन लिया, आपने सीसी में जिम्मेदार आदमी को डाल दिया, उसका सारा गुबार खत्म हो गया। Now it takes lot of competence to know कि हम ईमेल से, सर्वे से, फीडबैक फॉर्म से या ऐप से जो फीडबैक लेंगे उसको हम इमोशनली गेज कैसे करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि बड़ा नेक्स्ट चैलेंज है, वो यही है, और शायद DQ इसमें हमें DQ will answer all these questions. इंटरेक्शन डायरेक्ट होते हैं, पर्सनल कॉल और ईमेल, इनमें बड़ा डिफरेंस है। आप वो पिक नहीं कर सकते, आप फिजिकली देख के पूरी पर्सनालिटी को गेज कर लेते हैं, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी थॉट प्रोसेस को समझने में आपको हेल्प मिलती है जब आप फिजिकली मिलते हैं। जब आप बिल्कुल साइबर वर्ल्ड में मिलते हैं तो आई डोंट नो क्या होगा। तो ये एक चैलेंज है जो कि DQ will answer. There is a question online है, I think Batul है, if I'm not wrong. And it's question Basil आपका? जी, the question is how to deal with negative people. How to deal with negative people. So like let's say आप येलो पे, सही है, जो अगला बंदा जो है वो रेड में या ब्लू में। सो पैनलिस्ट से भी हम पूछेंगे, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या कैसे डील करेंगे। कोई एक आपका फीडबैक तो दे।
अगला बंदा इधर है, गुस्से में, सही है। हमने आपको तरीके बताया कि जब आप रेड में होते हैं आपको क्या करना चाहिए, लेकिन वो उसको तरीका शायद ना बताओ, वो थोड़ा सा टायर जलाने के मूड में होते हैं। सो आप रेड में है वो ब्लू में है, या तो बिल्कुल एनर्जी डाउन हो गया और बिल्कुल ही डिप्रेशन में है, और आप येलो में नेगेटिव है ना, तो बंदा हो गया बिकॉज ऑफ वॉट एवर ही इज गॉन थ्रू। सो आप उसको किस तरह से क्या करोगे? एम्पैथाइज, तो किस तरह से आप एम्पैथाइज करोगे? Understanding what he is going through. So you'll have an engagement with him, you'll talk to him, you'll try to understand why is he negative. Take him at a place where no one else is apart from both of you. Then understand his situation, then ask him, try to calm him down because you are at your peak and level of energy. So you can ask him and then understanding the situation, like keeping his cool down, you can resolve the issue and you can at least provide some solution and how he is going to get it. Unless you don't empathize, you won't get it. So that is it. So empathy is a first of all. ऐसा वो बंदा बात करने के मूड में ना हो, सामने जलाने के मूड में, लोग सुनेगा तो किसी की नहीं। बिल्कुल सही। फिर आप क्या करेंगे? जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। So ये तो मैंने आपसे पूछा। सवाल का मतलब मैंने आपसे पूछा, लोग सुनते ही नहीं। तो आपको बता दो। ये सब सवाल है। अरे तो मैंने तो आपसे सवाल किया था, सवाल भी सवाल नहीं, जवाब भी मैंने उनके सवाल। अच्छा आपने मुझसे सवाल किया। अच्छा जी आप बताएं, आप एम्पैथाइज कर रहे हैं, वो आपको जला रहे हैं। उससे पहले कि आप उसको किसी तन्हाई वाली जगह पे ले जाए, वो आपको ले जाएगा। I think it's a very good question. Yes. Yes, Mashra, ये बड़ा In the culture we are one living, in this is very well known. But I think यहाँ दूसरे person की responsibility आ जाती है कि उसको at least ये समझना होगा कि no matter he is not ready to listen to you, but he at least need to show some respect कि वो थोड़ी देर के लिए calm down हो जाए, आपको at least सुन ले। या ये जो आगे पीछे जो दूसरे लोग होते हैं उनको चाहिए कि भाई जब एक नॉर्मली दो बंदे इंगेज है ना आपस में तो वो नहीं समझेगा। सो पीपल अगर 3-4 हो जाएंगे तो वो काम डाउन खुद ही हो जाएगा। दिस इज बीन द कल्चर। सो आई थिंक यू नीड टू बी एम्पैथाइज्ड एंड अगेन आपको उसको समझने की या उसको थोड़ी देर बाद वो काम डाउन होगा, थोड़ी 2-3 अब्यूजिंग करेगा लेकिन वक्त आएगा वो काम डाउन होगा। इस वक्त तो यू नीड टू डोंट लेट योरसेल्फ आउट ऑफ इट। Yes, I think that you can manage. आप तीनों से ये सवाल। I think we need to categorize negative. There are two types of negative people. One is one person is he would be in a negative mood all the times, and one person is sometimes he would be in a negative mood, sometimes he would be in a positive mood. So if you take the example of the first person who is always negative, I'm afraid we can't do much about that negative person except for just staying away from that negative person. Or avoid him or keeping a distance. For the other person, लेकिन what if he is your line manager? क्योंकि सवाल जो था I think बतूल का I think उसका भी था, उसका तो मैं I think देखिए वही वाली बात आ रही जो अब्दुल्ला ने भी किया था। अब वो नेगेटिव है, आपका लाइन मैनेजर, आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है ना वो होती है ट्रस्ट। You have to build a relationship of trust, and you can't keep on making an effort for an entire life of 10 years, 5 years. आप reasonable एक effort कर सकते हैं trust build करने की, और उस एक कोई benchmark रख सकते हैं, एक time frame रख सकते हैं, और उसके बाद अगर नहीं होता तो obviously you have to move on. Obviously you would then find a new boss, find a new boss, find a new job. But you have to conclude, you have to take a bitter pill. This place is not for me. तो सर एक reasonable effort कर सकते हैं, और हाँ इसमें ये जरूरी है कि आप अपने अंदर भी देखें कि क्या आपके अंदर तो प्रॉब्लम्स नहीं है, और वो सारे वो चीज देखें। अगेन टू ब्रांचेस, अगर आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आपको अपने प्रोफेशनल करियर में किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब प्रॉब्लम बॉस में ज्यादा है, तो फिर अगेन आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऐसा है कि आपका माजी भी कुछ ज्यादा रहा है तो जाहिर है then you have to kind of adjust to the situation. Just to build on what Junaid said, I think there are so many situations that may cater to this question. There are negative people in your family, there are negative people in your friends, there are negative people in your office. Even in your office, there are negative people who are your senior colleagues, who are at your same level, or who are obviously a junior than you. So it depends upon actually what the situation is. Junaid very clearly explained on if he's your boss. So there are two extremes. One is either you leave the job, or either you obviously you survive.
and then there are other, you have to take the call to obviously manage him somehow. Either obviously listen to what he has to say, he may have some family problems, and you may have to obviously develop trust, which is obviously the main I would say backbone of any relationship. So this is how it is. So if it's in a family, you have to manage it. In your friends, you have to manage it. In your office, there are many approaches. You might not speak to that person at all because you know that if I speak to him, I'll bring that negativity to my work, to my lifestyle, to my way of thinking. So just ignore him. So that's the best way to go. That's another good one. एक छोड़ रहे हैं और एक ignore रहे हैं. आपसे दो डायमेंशन है नेगेटिव आदमी, एक तो आपका बॉस हो सकता है जिसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है एंड हु कैन इम्पैक्ट योर लाइफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. इसका एक एस्पेक्ट है और एक सोशल लाइफ का है, आपके दोस्तों में फैमिली में कुछ लोग होते हैं. तो इफ आई मेक कमेंट ऑन द बॉस फर्स्ट, मैं ये समझता हूँ कि बॉसेस जो है ना वो फॉर नो रीजन बिल्कुल भी नॉनसेंस बिहेव नहीं करते. ऐसा कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा है लास्ट 20 years के कोई बॉस हर एक के साथ नॉनसेंस हो. उसके कोई ना कोई दो चार लोग होते हैं जिनके साथ वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा होता है. देयर मस्ट बी अ रीजन. ऐसा जनरली ये मेरा ख्याल है कि बॉसेस फॉर नो रीजन नॉनसेंस नहीं होते. हमें अपने आप को रिव्यू करना है. क्या मैं जो काम करके गया हूँ उनकी सारी, हर एक का स्टाइल होता है. कुछ लोग होते हैं मुझे ऑल डिटेल चाहिए, कुछ लोग होते हैं मुझे क्रिस्प इन्फॉर्मेशन चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉस, इसको क्या चाहिए, ये किस वक्त लेके जाना. अर्ली मॉर्निंग जब वो घर से आ रहे हैं उस वक्त उनके पास जाके डिस्कस करना बेहतर है या एंड ऑफ द डे डिस्कस करना बेहतर है. क्या मुझे कॉरिडोर में चलते हुए उनको छेड़ना है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉस बिकॉज हर आदमी डिफरेंटली बिहेव करता है. तो आई एम अ फर्म बिलीवर कि बॉसेस कोई भी खराब नहीं होते. आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है. द वे यू आर बॉस टू समवन, आप इससे इंगेज कर लिया करें. क्या मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको सारों को मैंने खुश किया हुआ है क्या वो सबको मैं एक आंख से देखता हूँ? नहीं देखता. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. तो इसलिए आपके बॉस के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है. बट आप डिटेल काम करके जाएंगे तो आई एम अ फर्म बिलीवर कि हो नहीं सकता कि कोई एक बॉस एक कॉम्पिटेंट आदमी के साथ गुस्सा करे और मिसबिहेव करे नेगेटिवली. ये पॉसिबल वेरी ग्रेट. देखिए, अगर आपको नेगेटिव बंदा मिल जाता है और आप उसकी वजह से आप खुद रेड में आ जाते हैं. सो जैसे हमने कहा था एक्सरसाइज करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को, यू स्टार्ट वर्किंग मोर हार्डर rather than एक ये अप्रोच ये हो सकती है that you feel कि नहीं काम करने का फायदा नहीं है क्योंकि एक आप इंसान है, आपको हो सकता है तो you might just leave. But one way of going about it, another approach could be कि you really work very hard. अगर आप you make sure कि जो आप जो लेवल आपका अपना था आप अपना आपको स्ट्रेच करके उस तरह से एंड जो आपका काम है वो बात कर रहा है उस बंदे से. So वो उसका जो नेगेटिव एंड we have seen, मैंने आपने भी देखे होंगे लोगों के जो नेगेटिव कई लोग होते हैं जब वो काम आपको अच्छा मिल रहा होता है, you see that they have to at the end of the day they have to accept it. क्योंकि एक और जो आपने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं उसको से रिलेट भी कर सकता हूँ. हमारा एक्चुअली काम होता है एम्प्लॉइज का टू मेक आवर बॉस लुक ब्यूटीफुल. अगर हम अपने बॉस को ज्यादा कोई ऐसे काम नहीं कर रहे कि वो आगे किसी को आगे बता सके तो वो वाली चीज हो जाती है. अगर आपने ग्रोथ चाहिए you have to ensure कि आपका जो बॉस है उसकी भी जो मार्केट वैल्यू बढ़ रही हो. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बॉस को मैं कुर्सी से गिराऊंगा तो मैं उसकी कुर्सी पे आ जाऊंगा. इट नेवर वर्क्स लाइक दैट. क्योंकि अगर वो कुर्सी से गिर रहा है तो वो रोल है वो वीक हो रहा है, वो जॉब वो वीक हो रही है. सो आप दोनों को मतलब साथ करके करना है एंड इट्स इजियर सेड देन डन. अगर आप एक नेगेटिव बंदे से जाते हैं तो वो आपके अंदर एक इमोशनल टर्मोइल कभी क्रिएट कर सकता है. उसके लिए आपके लिए एक चैलेंज आ सकता है. बट दैट इज सॉरी सर, जुनैद भाई ने भी कहा था कि आप ट्रस्ट बिल्ड करें. प्रैक्टिकल बात करूंगा. जैसे सर अगर हम अपने बॉसेस से रिलेशन मतलब ट्रस्ट कायम करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ रहते हैं मतलब काम में मेहनत ज्यादा करते हैं तो कोलीग्स ये कहते हैं कि यार अगर कल आप प्रमोट होते ऊपर जाते तो ये उठा के ऊपर गया. अच्छा सर, अगर हम अपने कोलीग्स के साथ जब ज्यादा मिलते हैं उनसे रिलेशन कायम करने की कोशिश करते हैं तो मैनेजमेंट की तरफ ये तासुर जाता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है. तो सर ये दो सिनेरियोज हैं, कर दीजिएगा कि हमने न्यू स्टार्ट किया है, अब
आपकी तो माशाल्लाह मतलब एक होगी पूरी आपने उम्र गुजार दी है इसमें दो सिनेरियोज को हम कैसे लेकर चलें मतलब तो आपके दो सिनेरियोज हैं कि एक तो ये कि अगर बाकी लोग आपके ऊपर क्रिटिकल हैं, आपके ऊपर होते तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा आपका क्वेश्चन था सर एक ये था कि जैसे हम बॉस के साथ हैं तो वो भी फिर आपको सुनने को पड़ता है अपनी कुलीग से। अगर आप कुलीग के साथ मिलते हैं तो फिर मैनेजमेंट में ये तासुर जाता है ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, यानी ये ग्रुप बंदी कर रहे हैं, तो सर दोनों को किस तरह हम लेकर? ठीक है, Which one is the best for you? आपने बिल्कुल सही कहा, which one is the best। पहली बात तो बहुत सारे बेस्ट अगर हम मान रहे हैं ये नॉइज होती है, ये जो आप जो बात कर रहे हो ना ये नॉइज है। आपको पता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। Nobody can be a better judge of who you are than yourself। अगर मैंने कोई गलत काम किया होगा ना, सबसे पहले मुझे खुद पता होगा, मुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम नॉट, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं गलतियां करता हूँ, उस चीज को एडमिट भी करना बहुत जरूरी होता है। जो आई थिंक सारे जुनेद ने भी बात बोली थी, वो वही बात थी कि आप अपने ऊपर काम करो। पहली बात तो ये अपना रिव्यू करो। जहाँ बाकी लोगों के साथ एम्पैथाइज तो आपको हर एक के साथ करना है। आपका जो चाय वाला जो चाय देता है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम एंड यू हैव टू गिव हिम लव। आपको पता है जो अली बाबा वाला जो है जैक मा, आपको पता है, कितनों को पता है जैक मा का हाथ से? तो जो जैक मा है, he is one of the most inspirational leaders। वो कहता है LQ, हमने अभी कहा EQ, हमने कहा डिजिटल क्वोशिएंट, वो कहता है LQ। LQ क्या है? लव क्वोशिएंट। You have to love your customers, you have to understand, you have to love everyone। तभी आपकी उसमें आएगी। अगर आपको वो लगता है सबकॉन्शियस माइंड में कि उनको लग रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स, यानी आपके ऑफिस में माजरत के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, और हर ऑफिस में होती है पॉलिटिक्स, लेकिन if you are not political, people will get to know about it। If you are a very clean person, so everybody knows that। And I think I would appreciate Nazeem and again ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो आपने पेश की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट आइदर और सिचुएशन कि आप या तो बॉस को चूज करें या अपने कोलीग को चूज करें। ये तो प्रश्न है। आपको अपने बॉस के साथ तो ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप मैरिज की बेस पे बनाना है। किसी खुशामद की बेस पे अगर आपका बॉस आपके साथ रिलेशनशिप बना रहा है, देन यू आर वर्किंग विद द रॉन्ग पर्सन, दैट्स फॉर श्योर। आपको जब मेरिट पे और प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग आप करेंगे, आप ग्रुप बंदी नहीं करें, किसी के खिलाफ ओपिनियन बिल्ड करने के लिए 4 लोगों को जमा नहीं करें। बहुत बात होता है कि यार देखो वो फलां जो है बहुत ही बॉस के करीब हो रहा है, और आप 5 लोग मिलकर 10 मिनट जो टी ब्रेक में उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, एंड यू वेस्ट योर टाइम। और ये सारी इंफॉर्मेशन बॉस तक पहुंचती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन किसी जगह में बैठ के आपने बॉस के बारे में कोई ऐसा कमेंट कर दिया जो उसको सामने होते हुए ऑफेंड करता, तो पहुंच गया, तो वो आपको अगले दिन उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बट यू डोंट रिमेम्बर कि आपने खड़े होकर किसी और जगह पे ऐसी कोई बात कर दी थी, या कॉरिडोर में चलते हुए ऐसी कोई बात कर दी थी। मुझे लगता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपने आप को रिव्यू करें, ऐसी किसी भी गुफ्तगू से परहेज करें जो कि बॉस को ऑफेंड कर सकती है, बिकॉज वो बात आपके बारे में कही जाए तो वो आपको भी ऑफेंड कर सकती है, और बॉस के पास एक अथॉरिटी भी है। तो मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि आपके जो कोलीग्स हैं पीएसएम के साथ आप फेयर रिलेशनशिप रखें। डोंट ट्राई टू बी वेरी पर्सनल, वेरी क्लोज, कि आपको एक दूसरे को ओपिनियन इन्फ्लुएंस करें, और ना ही आप ग्रुप बंदी की कोशिश करें। मुझे लगता है कि फेयर रिलेशनशिप रखें तो यू कैन मेंटेन गुड रिलेशनशिप बहुत अच्छा। Just one thing that I would like to add, and by the way those online questions भी जो जुनेद के पास हैं, अभी जुनेद भी बात करेंगे। इसमें से जैसे अभी जो नदीम ने बोला, इसमें से एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप लेट्स से किसी को मतलब ये स्पेस मतलब दे देते कि वो आपके ऊपर मतलब आपको वो तरह से करे नेगेटिविटी और ये वाली जो चीजें, तो बेसिकली वो आपको कंट्रोल कर रहा है। सो आप यू आर लेटिंग मतलब समवन एल्स कंट्रोल यू, रूल योर इमोशन साइड वगैरह, यू आर लेटिंग इट गो। ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह ना आपका डिक्टेट करती है, जब सारी चीजें करती है, होती है, मैं ये नहीं कह रहा, बट उससे ये होता है कि फिर आपके जो बेस्ट है ना वो नहीं कभी किसी को नजर आएगा। जो आपने जो शाइन करने का जो आपका मोमेंट है ना वो किसी को भी नजर नहीं आएगा, बिकॉज एट दी सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये होगा कि मेरे बारे में क्या पड़ेगा। पाकिस्तान है यार, हर कोई एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं बोलता, बुरा ही बोलता है, सॉरी,
दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रियलिटी, लिव विद इट। और दूसरी बात ये, अगर मेरे बारे में कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, और कल को आप लोग सीनियर पोजीशन पे जा रहे होगे, मैं आपके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, सो आप सब सीनियर पोजीशन होंगे, कीप दैट इन माइंड। आपको बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप का फीडबैक दे रहे होंगे आपके सबऑर्डिनेट्स के बारे में। आपको कोई बोल रहा होगा ये बहुत अच्छा है, कोई बोल रहा होगा ये कौन नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। आपको उस बातों पे नहीं डिसीजन लेना उस बंदे के बारे में, आपने उसका काम देखना है, आपने रिव्यू करना है, आपने समझना है अगर वो सही काम नहीं कर रहा या कर रही तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो वो आपको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, आई नो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, बट आई वुड लाइक इन द ऑनलाइन वाले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। There's online question which is also an extension of the point that we were just discussing earlier. Your name is not mentioned. I'll just read out the question and I'll try to answer it. Sometimes bosses get to know person problems and misuse them later on under some specific situations. Like for example, if an employee has financial difficulty, they can use it for free overtime. I'll repeat it. Sometimes bosses get to know person problems and misuse them later on under some specific situation. Like for example, if an employee has financial difficulty, they can use it for free overtime. I think one thing that we have to understand is, first of all, this question and the discussion that we were just having right now, it's basically very common, and I would say 80, 90 or maybe almost 100% of the workplaces that we come across have similar kind of problems like this. What happens is actually that there are two sides of the coin. For everything there are two sides, positive and negative. What unfortunately we do most of the time is, including myself, we try to focus on other people, negative things, our bosses, our peers, and what other people are saying negative about ourselves. What we try to forget, what we try not to focus on is our own development. What are the things that we can do better? What are things where we can actually improve upon? बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बहुत सारी चीजों में हमारा दूसरे लोगों पे सराउंडिंग में कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारे चीजों में हमारा कंट्रोल होता है। हमारी चीजों पे कंट्रोल क्या है? हम EQ बेहतर कर सकते हैं, हम लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिलेशनशिप पे फोकस कर सकते हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम फीडबैक और क्रिटिसिज्म को किस तरह से लेते हैं। Obviously, as I say, keep on saying, there are two sides of the coin, positive and negative. देखें, एक negative feedback या criticism is always very difficult to take. It's always very difficult to take. Whether it may be a loyal employee or whether it may be a successful entrepreneur, criticism or negative feedback is very difficult to take, because you have given this business or job your blood and tears and your time, and you have actually kind of created a misbalance between family life and business life or office life. So it's very difficult to take. But at the end of the day, you have to realize at most of the times these criticism or negative feedbacks are kind of related to the truth. और वो बाज़ का सच होते हैं, और उसके ज़ाहिर आपको देखना है कि अपने इमोशंस को साइड में रखना है, कि इमोशंस को अपने ऊपर हावी होकर इसका जवाब देना है। आई थिंक ये चीजों को बहुत देखने की जरूरत है। इसमें एक खाली मैं चीज ऐड करूंगा, क्योंकि उसने कहा कि he or she, I don't know कौन था, कि they held ransom रखा हुआ है एक तरह से, और वो आगे से कर रहे हैं। जी, मेरा अपना व्यू ये होगा, आप लोगों का फीडबैक होगा, अगर रिलेशनशिप इतना सॉर हो चुका हुआ है जहां आपको ये फील होता है कि someone is exploiting you, and you देखिए there are so many other things that happen in office. बिहेवियर लोगों का आपके साथ मिसकंडक्ट हो सकता है, या कुछ चीज हो जाती है जो कि विच आर ऑफ लिमिट्स होती है, जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डिसिप्लिन नहीं होता। खासतौर पे खवातीन को ऑफिस एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। अगर कोई इस तरह की जरा सी भी चीज हो, तो अगर ऐसी चीज आ जाती है जहाँ रिलेशनशिप इस लेवल पे आ गया, देन प्लीज ट्राई टू लुक फॉर अनदर जॉब एंड मूव ऑन। पहले सीनियर मैनेजमेंट को बताएं, बिल्कुल जैसे आपने कहा, एंड देन अगर नहीं होता सीनियर मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, कैन आई गेट समथिंग? जी स्टीवन कवी जो नाम सेवन एस्पेक्ट बड़ा अच्छा लिखा है कि बाद में जो टफ टाइम्स आता है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश द रिलेशन। सही तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपनी पूरी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो टफ टाइम भी जो ना रिलेशन डेवलप करने के काम आए हुए दोस्त जब वो टफ टाइम हो गया किसी के ऐसा आ गया, लेकिन हम रिलेशन डेवलप करने में अच्छा होगा। Other question, it's by Javed Ahmed. Can a person change their lifestyle? I mean, I've always felt many of my good friends have left me because they said I am overconfident. Even I always give my best to favor them.
उनके क्वेश्चन में ही आंसर है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सारे दोस्त छोड़ गए, तो ये बहुत कम लोग एग्री करेंगे कि वो सारे गलत थे। तो ये सेल्फ रिव्यू और सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। वी ऑल नीड टू लुक डीप इनटू आवरसेल्फ, और हम सब में प्रॉब्लम्स होते हैं, ये फॉर श्योर है। और एक दफा हम ठीक करते हैं तो दोबारा खराब हो जाते हैं, फिर हमें एफर्ट करनी पड़ती है। तो आई थिंक इट्स अ कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट प्रोसेस। रिव्यू करें, अपने दोस्तों के साथ बड़ी ओपन कम्युनिकेशन करें कि यार मैंने ये रियलाइज किया है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे कुछ डिफरेंट है, and if you have different expectation, please share with me, and I will try to alter my behavior accordingly, and I will try to adjust. I think open communication among friends जो है वो कहीं ज्यादा important है। इसको ऑफिस के पढ़ाई से बिल्कुल मुख्तलिफ होकर देखना चाहिए। सर मेरे मल्टीपल सवाल है। सर ये AI जो है इमोशन इंटेलिजेंस, ये ब्लू कलर जॉब और व्हाइट कलर जॉब में कितना डिफर करता है? कि जो हमने अभी डिस्कशन करी वो बेसिकली व्हाइट कलर जॉब्स की थी, लेकिन आप सब एग्री करेंगे कि ब्लू कलर जॉब्स के लिए भी उतना ही वो है, क्योंकि हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, एक ऑफिस लाइफ होती है, लेबर जो भी है, तो उसको आप किस तरह कैटर करते हैं, वो उसको किस तरह कैटर करेंगे? मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम करता हूँ और पहले उससे पहले मैं बिजनेस डेवलपमेंट और इंटरनेशनल मार्केटिंग और बाकी चीजें देखता था। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को देखता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में मेरे पास 600 लोगों में से 500 लोग जो है वो वर्किंग क्लास या उसको वर्कर्स हम जिसको कहते हैं, उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी रिसेंटली हमने कुछ अपने वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स अनाउंस किए, समहाउ जो कि बड़ी अच्छी खबर थी और बड़ा मेरा ड्रीम था, पिछले 15 साल से हो गया। लेकिन उसमें शर्त ये थी कि हम पहले 40 घंटे काम करते थे और एज पर लॉ हमें 48 घंटे तक काम लेने की इजाजत है। तो हमने कहा कि अब सैटरडे वर्किंग डे हुआ करेगा। पहले भी वर्किंग होता था, लेकिन पहले ओवर टाइम पे होता था, बगैर ओवर टाइम पे होगा। बट अदर देन दैट आपको ये 20 किस्म के बेनिफिट्स हैं जो कि किसी भी ब्लू चिप कंपनी में होते हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कि नहीं ये तो बड़ी ज्यादती है, आपने हमसे हफ्ता छीन लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके इमोशंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो वर्किंग क्लास है या जो ब्लू कलर है, उनके इमोशंस ज्यादा फाइनेंशियल ड्रिवन होते हैं, बिकॉज उनके लिए 500 रुपए बहुत मैटर करते हैं, आपके लिए 5000 भी मैटर नहीं करते हैं। तो उनको हमेशा उस साइड पे इमोशंस को लेके उन्हें एक्सप्लेन करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें कि तो ये आज के 1000 का तुम्हें बुरा लग रहा है, ये तुम्हें ग्रेचुटी की शक्ल में, प्रोविडेंट की शक्ल में एंड ऑफ द लाइफ मिलेगा जब तुम्हारे पास और कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेडिकल कवर मिल रहा है, तुम्हें छुट्टी मिल रही है, तुम्हें बोनस मिल रहा है। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम इमोशंस को डील करते हैं। आप ट्रस्ट की जिस तरह ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप ओपन कम्युनिकेशन करें हमेशा हर एक के साथ, और दूसरे बंदे को यकीन दिलाएं कि आप अपना हार्ट आउट बात कर रहे हैं, ताकि वो भी सच्ची बात करे, आप भी सच्ची बात करें। एंड व्हेन यू बोथ ऑफ यू आर सिंसियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देयर इज नो रीजन दैट यू कैन नॉट। तो इमोशंस सबके होते हैं। वर्किंग क्लास के इमोशंस, उनको रिस्पेक्ट की ज्यादा जरूरत होती है बाकी लोगों से। मैंने तकरीबन 15 इयर्स मैंने शायद बिल्डिंग जहाँ हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे मैंने जॉब की है, मैं पॉडकास्टिंग में होता हूँ। तो उस पर सिक्योरिटी गार्ड होता है। आई मेड द हैबिट आउट ऑफ नोवेयर कि मैं उस गार्ड से अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद हाथ मिलाता था मॉर्निंग में, और वो एक लम्हे के लिए जो बहुत ही खुश हो जाता, आहिस्ता से होता, दोस्त बन गया। मैंने उससे पूछा कि यार मतलब बड़े खुश होते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। इधर पता नहीं 1000 मसाइल प्रॉब्लम होते हैं, बेटी का घर में ये मसला है, बेटा है, कोई बीमार है, पैसे कम है, किराया है। आप जब इतने प्यार से मिलते हैं तो जाहिर उनकी निगाह में मैं बड़ा आदमी हूँ। तो कहते हैं कि मुझे इतना अच्छा फील होता है, मैं 5 मिनट के लिए भूल जाता हूँ कि मैं एक ऐसी जॉब कर रहा हूँ जो बड़ी टफ है और मेरा लाइफ टफ है। मुझे लगता है कि बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप अपने टी बॉय से मिलें, उससे उसके घर वालों का हाल पूछें, कभी प्रॉब्लम हो तो उसकी हेल्प करें, सिक्योरिटी वाले से हाथ मिलाएं जब भी मौका मिले, नॉट एवरी डे। उससे उसका हाल पूछें, उससे हाथ मिलाएं, उसके पास खड़े हो जाए, आधे मिनट के लिए खड़े हो जाए, घर में खैरियत है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। यकीन करें आपको प्रॉब्लम आपके पास आएगा नहीं प्रॉब्लम लेके, लेकिन आपके ये कह देने से उसका मोरल बहुत हाई हो जाएगा एंड ही विल स्टार्ट लविंग यू। When people start loving you,
मुझे लगता है कि उनके लिए इमोशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लू कॉलर। That's fantastic. हमें actually we are slightly over time हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक ये लास्ट क्वेश्चन सभा से ले लें। अच्छा 3 क्वेश्चन तीनों मिलकर बात कर सकते हैं तो एक ही बना दें क्वेश्चन क्योंकि टाइम थोड़ा सा है। मुस्तफा ने As a person, we believe that every person has to go through qualities, abilities, and some disabilities or we as an employee get different screening because where the employee test is personal intelligence and technical intelligence and emotional intelligence. So after getting through all 3 intelligence tests, emotional intelligence test very good. Right? After with the passage of time, we came to know that person has some emotional intelligence problems which haven't been tested or which haven't been revealed at that time. And we know that the person has good personal intelligence and technical intelligence and give good output. So we as an employee and a team member, how get the maximum benefit from that? We as a person, can you rephrase it? कि आप कह रहे हो कि we as a person, कि आपसे टेस्ट हुआ टेस्ट से आपको पता चल गया कि गैप्स कहाँ हैं? The person was okay for at that time. After the screen test, he has got emotional intelligence, everything is good, it's perfect. After the passage of time and when we get with him, building teams and team discussions, we get to know that the person has emotional intelligence problems. Right? Negative terms and we can't get to that problem. Right? How the person has good technical skills and giving maximum output. And we as a person, as an employer, are materialistic and we believe in output and get maximum benefit from an employee. Right? How we can utilize that person? मुकामत की materialism किस तरह हम कर सकते हैं? One thing. Second, I have a question that we at times get in disagreement with the RPs, team discussion में कोई disagreement हो जाता है, deadlock आ जाता है, and you can't conclude that thing. And as said earlier, कि या तो आप उसको category कर दें या उसको for the time being hold कर दें. But we know कि वो discussion है वो यहीं end हो जाएगी. Whatever you going to discuss, we should conclude at that time. How we communicate our problem, disagreement हो के हम छोड़ देंगे तो वो quite convey नहीं होगा. How we are going to get our views conveyed at that particular time. So at times हम ये हुआ कि बाद में सोचेंगे. People listen less and think later on कि उसने बोला था तो उसका क्या मतलब. At time वो बाद में सोचेगा तो हो सकता है कि जो आपने idea पुल किया था वो उसको प्लग करें and उसी को implement करें. तो वो आप किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर? इसको मैं एक टॉपिक चीज बताऊं जो ये होता है ना इमोशनल जर्नी होती है, ठीक है? क्योंकि इसमें से इमोशनल जब जर्नी होती है सो इट जैसे मैंने पहले कहा रेड ब्लू ये सारा आपके अंदर एक जिंदगी के अंदर आप तीनों फेजेस में से चारों फेजेस में से क्वाड्रेंट से हो सकता है. सो पहली बात तो ये जैसे सेल्फ अवेयरनेस की बात है कि ये आपको अपने ऊपर भी देखना है. You might have given a test and you might have passed it मगर उनके हिसाब से उनकी ग्रेड के हिसाब से फॉल कर रहे. जिस बंदे ने बनाया ना उसका नाम है मार्क ब्रैकेट, मुझे नाम भी याद आ गया क्योंकि सेशन से बहुत ज्यादा हो गया. सो वो है जिसने था उसका एक टेस्ट हुआ था एंड ही फेल्ड इन दैट एंड ही वाज अ स्मार्ट गाय. उसकी माँ की डेथ हुई थी 2 दिन पहले, सही है? सो वो इमोशनल जो बर्डन होता है ना उस चीज का क्योंकि लॉस इतना बड़ा था, he was carrying that loss. उसकी वजह से वो सारी चीजें उसका टेस्ट जो कि would have passed otherwise, so वो नहीं हुआ. So जो टेस्ट होता है ना they're just good enough. तो पहला आपका क्वेश्चन है वो कोई यार्ड से कभी भी नहीं हो सकता. इवन बहुत सारे जो आपको शुरू में डैनियल गोलमैन ने बोला IQ के लेवल पे बराबर थे, कुछ ज्यादा आगे निकल जाते हैं कुछ पीछे. मैंने एक बुक बड़ी जबरदस्त पढ़ी थी स्मार्ट पीपल में ये था उन्होंने कोई 70 years का टेस्ट किया था जो कि क्लास के कहते थे ना कि ये गो गेटर्स हैं ये बड़े आगे जाके जाएंगे और उनको 30-40 years के बाद उन्होंने देखा कि आपको गूगल पे भी आप सर्च करो आपको इस तरह की एक्सपेरिमेंट मिल जाएगी. उनमें से कोई भी बड़े पोजीशन पे नहीं गया. जो एवरेज बच्चे थे उनमें से एक सेनेटर था अमेरिका में, एक बंदा कोई CEO था. मतलब वो ना जो एवरेज वाले थे वो ज्यादा रेजिलिएंट थे, वो ज्यादा आगे थे लाइफ में. सो ये जो टेस्ट होता है ना दिस इज नॉट फॉर द एम्प्लॉयर, दिस इज फॉर you to better understand how things are. Second आपका क्वेश्चन था कि हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में ये सारा जो हम मैपिंग की बात पूरी जो हम कर रहे हैं क्रक्स इसका जो है ना वो ये होता है आपके इमोशन ना आपके डिसीजंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं. इफ यू आर इन अ गुड मूड
इसी की मार्क ये मुझे कहीं सुना करते, मैं इसको काफी ज्यादा कोट कर रहा हूँ। उसने एक टेस्ट जो टीचर्स का लिया था कि टेस्ट जो टेस्ट देते थे, if they are in a good mood or bad mood, और उसके साथ गेज किया। अगर वो टीचर्स इस वाले एरिया में थे ना, रेड वाले में जोन में थे, तो एक पूरा ग्रेड गिर गया मार्किंग का। यानी आपका जो टेस्ट हो रहा है, मे बी आपने और मैंने बराबर दिया, लेकिन वो बंदा मूड में बुरे में था, तो आपका जो पूरा ग्रेड है नीचे, एक आपका खराब है, मेरा आपसे बेहतर ग्रेड है। सो बेसिकली व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल्स यू कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट माइट बी दैट पीपल राइट नाउ आर सिटिंग हियर। सो जो टाइम की हम बात करते हैं ना, वी वुड वांट देम टू रिलैक्स एंड कम टू दिस ग्रीन वाले एरिया। So they are in a position and time से वो हो सकता है कि you have intelligent questions, not provoking questions. Intelligent questions is जिसमें से that makes them think why they saying a particular thing. अगर आपका किसी चीज के ऊपर एक view है, उसके पीछे basis होगी ना, so you have intelligent questions. You know, I'm an official mentor also. Mentor का काम जो होता है ना, हमारे यहाँ बच्चे समझते हैं कि वो काम करके देगा। Mentor का काम होता है खाली just to be there to support, to help them to go वाली चीज। तो जो conflict वाले में भी आपको you have to take that slightly. I'm not saying कि you backseat का मतलब है कि आप अपने position से ही हट गए पीछे, आपने withdraw कर लिया, आपने वो काम करवाना है। If you are a go-getter, आपको अगर position में आगे पे जाना है, आपको वो काम करवाना है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपको पूरी टीम को consensus generate करने के लिए you would have to give space. जैसे आपको स्पेस चाहिए, आपको दूसरों को भी स्पेस देना पड़ेगा। So I think इसमें at the first part में आता है, तो I think देखिए हमारे यहाँ शायद इशू ये है कि टेस्ट भी अगर हो जाता है, I'm not aware of any company that is taking any test for EQ, but you know that ideally there should be a full process. First is the screening process, and then there has to be a complete dialogue or complete observation for all the employees what they are in terms of EQ level. उधर वो कल्चर शायद हमारे यहाँ भी नहीं है। अगर वो कल्चर होगा तो इस तरह के लोग आइडेंटिफाई होंगे जिन्होंने टेस्ट पास भी कर लिया होगा विद हाई EQ level, but they are not up to the mark, so there would be a process of counseling and re-evaluation and everything. उधर कल्चर में भी बैठ होता है, वो सारी चीजें आई थिंक उससे भी टेक किया जाता है। I think let's finish करना है। हम we can have these conversations over tea, and online वाले जितने भी हैं वो हमें online, वो हमें email पे करके questions करते हैं। We have email addresses of the panel. आपने अगर कोई direct करके भी करना है, if you want to have you have a specific question for Nadeem, if you have a specific question for Kadir या Junaid, so we can actually signpost it to them. So this conversation is not dead. This conversation is alive क्योंकि हम सब जिंदा हैं, and it should always remain alive. One thing I wanted to add कि हमने इसमें बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा हमने बात नहीं की बिल्कुल, which is very important. I think इस सेशन से मैंने दो तीन चीजें जो मैंने लर्न की हैं, वो नंबर वन इज दैट वी नीड EQ because we work in teams. अगर मैं आइसोलेशन में अकेला काम कर रहा हूँ, I don't need any EQ क्योंकि मुझे खुद को मैनेज करना है, that I can do, I am expert at that. But since I work in teams, nowadays majority of our jobs are our works are designed like हम teams में काम करते हैं, so we need to manage others as well. Number one, that is important, and that we need to research everyone, including myself. And number two is the body language. How do I manage my body language? So just to elaborate on what Taimur is doing, आपने Taimur का हाथ देखा कितना यूं था, right? That's what I observe. And this is collaborative. Taimur अपने ideas throw करे था आपकी तरफ, आपका भी feedback आ रहा था. There are people who are like this. Right? This is authoritative. क्या मैं बता रहा हूँ सुन लो. Right? And then there's the third extreme के ये करना है, ये करना है, ये करना है. This is how things are. This is what my research says. So Taimur को मैंने observe किया. Taimur is like a collaborative version, and this is what was practiced by Obama. So whenever he used to deliver his speech, he said, "We'll take your children and we'll do this for you and we'll do this." If you like, because this body language is giving a message that this guy is a collaborative person and he'll do something very collaborative for us as compared to other senators or like other people that say, we'll put your people to school or we'll put this and then we'll take you to the moon and this things like that, and we'll give you free healthcare. So people were like, yaar ye banda collaborative hai. So even he grew through the ranks very quickly as compared to other politicians जो के बाप दादा के जमाने से चलते हुए आ रहे थे, and obviously they won, but
Obama got popularity mainly because of this body language that he resonated in the audience, which I think is a big learning for us today from this session. Thank you very much. I think, and thank you very much for being so patient because this has been a long session. Usually what I feel is कि जो होता है ना हमारे सेशन छोटे होते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है. I'm always worried कि जब हम घंटे का हो, but I'm really enjoying it कि आप लोगों के अभी भी सवाल हैं, which means कि I think अच्छा सेशन गया. आप प्लीज अच्छा सेशन गया को आप रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे तालियों से फॉर द पैनलिस्ट. And thank you very much online पे जो हमें देख रहे थे and please do give your feedback as well. Thank you everyone. We would now like to present the mementos to the speaker and to the guest panelists. First of all, I would like to call Mr. Hamid Khan. He is our ex-president, MPF, to present the He will be presenting memento to Mr. Taimur Mehran Khan. Nice meeting you. I would now like to call Ms. Farzana Munaf, and she will present memento to our guest panelist, Mr. Abdul Qadir Sultan. Just to highlight, Farzana Munaf is first chartered accountant of the Mimir community. I guess I got and she was also obviously first gold medalist in the Mimir community. Vice President. Okay, now I would like to call Mr. Wasim Patel to present the memento to our another guest panelist, Mr. Nadeem Ahmed. Thank you everyone for attending this session, and we would now like to close the session. Refreshments are being served. अच्छा इसका रिवाइज किया है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर एक फनी सटायर है साइंस में एक कॉमेडी शो है उसके ऊपर इसको सीरियसली नहीं लेना लेकिन ये जोक है. Thank you for having it all. Where were you? I went to the beach. It's not working, Jerry. So stop working. What is it that isn't working? Why did it all turn out like this for me? I had so much problems. I was personable. I was bright. I'm not academically speaking. I wasn't something. I always know when someone's uncomfortable at a party. It all became very clearly sitting up there today. Every decision I've ever made in my entire life has been wrong. My life is the complete opposite of everything I wanted to do. Every instinct I have in every aspect of life, something to wear, something to eat, it's all wrong. Tuna toast coleslaw. Yeah. No, wait. I always have tuna on toast. Nothing's ever worked out for me with tuna on toast. I want the complete opposite of tuna on toast. Chicken salad, unripe, untoasted,
with a side of potato salad and a cup of tea. Well, there's no telling what can happen from this. You know, chicken salad's not the opposite of tuna. Salmon's the opposite of tuna. The salmon swim against the current, and the tuna swim with it. Good for this thing. George, So, what am I supposed to do? Both men, no jobs, and no money, a little bit nervous. Don't straight from it. Well, here's your chance to try the opposite. Instead of tuna salad being intimidated by women, chicken salad and go home. I should do the opposite. If every instinct you have is wrong, then the opposite would have to be right. Yes. I will do the opposite. I used to sit here and do nothing and regret for the rest of the day, so now I will do the opposite. I couldn't help but notice you were looking in my direction. My name is George. I'm a boy, I live with my parents. Be necessary. Something is happening in my life. I give this opposite thing last time. Up was down, black was white, good one.